recording. All right. Yeah, and just check whether you can see my screen in 3, 2, 1 and go. On time. Yep. So yep. So let us start today's class. So Soumya, just before starting, can you just explain what are all the points where you are facing trouble with inverse? So yeah, basically just the list of formulae I sent you and how to memorize those formulae. Basically just the renditions of it for different conditions. Okay, so for different conditions, it has become difficult for you to like memorize it, right? Like minus 1 by root 2 to root 2. Yeah, Minus it's 1 by supposed to root be 3 to done with root 3. graphs only, I guess. Yeah. So I'll just teach you a method through which you can memorize them easily. But of course, you wouldn't understand it in one go. So I'll be doing it like twice or thrice. I'll be asking you to do a few particular problems. Okay. So before learning anything, let me just share a pic with you. Okay. Just 1 second. Let me just try whether I can crop it up. Ooh, yeah. So this is an excerpt from Arihant, and obviously in many other books you must have seen formulae like this, right? Yes. Tan inverse x plus tan inverse y equals to so many things. So basically we have 3 formula up here, and for tan inverse x minus tan inverse y we have 3 formula over here, right? So total 6 formula, and अगर देखा जाए तो बहुत सारे conditions लगे हुए हैं, तो फट जाती है ना याद करने के लिए. तो मैं तेरे को ट्रिक बताऊंगा जिससे you do not have to learn as many formulae, but you can do it with equal ease. ठीक है. But before that, you should know this, that sine inverse of minus x is minus sine inverse x, right? Yeah. You have tan inverse minus x Minus equals to what? Yeah, minus tan inverse x, and you have cos inverse minus x as pi minus cos inverse x, right? So these 3 things you already know, right? है ना? Yeah. So these 3 things are very important. ये वाला 3 चीज याद रखने से तेरे को बहुत सारा फॉर्मूला अपने आप डेराइव हो जाएंगे, ठीक है? So apart from this, I'd like you to remember 3 more things. Okay, so these are tricks to remembering the formula that we'll be going to learn. Okay, so the trick is for tan inverse, we always use plus minus pi plus theta. For sine inverse, we always use plus minus pi minus theta, and for cos inverse we always use 2 pi plus minus theta. Okay, like these are the 3 things. हाँ, generally. बस ये तेरे को इनवर्स के जितने भी फॉर्मूला है ना, याद करने का अगर तेरे को ट्रिक चाहिए तो all that you have to do is you have to learn this. ठीक है? And I'll then explain it to you कि वो कैसे आया and how did it come and कैसे this is going to help you and all. But just remember this for now and you'll be able to solve all the questions. Okay? So what you should remember is tan के साथ जो एंगल जाता है पाई होता है, साइन के साथ पाई जाता है, कॉस के साथ 2 पाई जाता है ना? And tan में एंगल will be positive, साइन में एंगल will be negative, and cos में it may be positive or it may be negative. ठीक है? है ना? Do not confuse it with the fact कि cos inverse something will always be positive. That is completely different. Okay? So just remember कि ये 3 है. ठीक है? Okay. And now let us start. Okay? So let us start with a very famous formula, tan inverse x plus tan inverse y, right? Equals to what? Okay, यहाँ से ये एक फॉर्मूला से हम लोग सब कुछ डेराइव कर लेंगे. ठीक है? याद रखना,
this type of a formula, it comes under trigonometric inverse plus trigonometric inverse gives just 1 second, let me just host it down. इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, then it will become clear. Okay. थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं. Okay. So these type of formulas are tan inverse x, rather not tan inverse, trigonometric inverse plus trigonometric inverse equals to some other trigonometric inverse, right? Yes. So this is technically tan inverse plus tan inverse gives tan inverse. Okay. Okay. So tan inverse के लिए we know that answer is this much. ठीक है. All you have to remember उसके बाद कि tan of a plus b क्या होता था? tan a plus tan b by 1 minus tan a tan b. ये वाला तो already याद होगा, right? Since you have done all the compound angles and such, right? So this thing will just, okay, this thing will just keep the bottom and we'll use it. And now tell me what will be the answer to this. It should be tan inverse x plus tan inverse Y. Sorry, tan inverse x plus y Divided by 1 minus x. 1 minus xy. But obviously this always doesn't satisfy. It has some conditions. Yes or no? It has some conditions. ठीक है. अभी जो भी कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे ना, याद रखना एक चीज, हम लोग कुछ भी अगर कर रहे हैं, x and y should always be positive. ठीक है. This is an inherent condition for everything. X and y should be what? Positive. ठीक है. For everything that we learn under this umbrella ना, we will consider that x and y are both what? Positive numbers. ठीक है. अगर नेगेटिव आएगा तो क्या करेंगे वो भी बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए बाय डिफॉल्ट x and y are what? Positive. ठीक है. अब इसके लिए आपको बस दो कंडीशन याद रखना है. tan inverse x plus tan inverse y का सिर्फ दो कंडीशन याद रखना है. The first condition is, you see, I have written this will give you some angle, right? xy less than 1. Yeah, this will give you some angle, right? It will give you some theta. Okay. Yes. And tan inverse में क्या होता है? Tan inverse में positive. No, just see. Tan inverse में we use plus minus pi plus theta. Right? Tan inverse में we'll be using ये वाला, this is theta. Second one will become pi plus theta. ठीक है? Pi plus theta. And इसका बस दो कंडीशन है, xy less than 1 and xy more than 1. और कुछ भी नहीं याद रखना है. ठीक है. xy less than 1 and xy more than 1. and ऐसे क्यों हो रहा है? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि xy less than 1 ही क्यों ले रहे हैं, then I'll give you a very negative हो जाए. हाँ, but how does that count? I'll just tell you. Just tell me, tan inverse x will give you a number from minus pi by 2 to pi by 2, right? And tan inverse y will also give you a number between minus pi by 2 to pi by 2. Yeah. ठीक है ना? So maximum value of this would be pi by 2 and maximum value of that would be pi by 2. Pi by 2. है ना? But what is the maximum value of this thing? Tan inverse something. This is also minus pi by 2 to pi by 2, right? Yes. तो यहाँ पे भी मैक्सिमम में कहाँ तक जा सकता हूँ? pi by 2. मैक्सिमम में pi by 2 तक जा सकता हूँ. जा सकता हूँ कि नहीं? Yes. खुद सोचो, है ना? Which means थोड़ा सा अगर सोचेगी तो not in very coherent terms, but ये वाला अगर pi by 4 और pi by 4 होता तभी जाके मैच करता. Yeah. है ना? And tan pi by 4 is how much? 1. Tan pi by 4 is how much? 1. And actually this is not the very cogent explanation कि क्यों यहाँ पे xy less than 1 लिखते हैं. But understand that when x into y will become less than 1, this quantity will give you something less than pi by 2. Oh, okay. है ना? And then it falls directly under this umbrella. Yes or no? But the moment x into y is more than 1, the moment x into y becomes more than 1, then tan inverse x plus tan inverse y will become more than pi by 2. Yes or no? Yes. है ना? And then you cannot use this formula anymore, क्योंकि ये वाला formula आपको सिर्फ minus pi by 2 से pi by 2 तक देता है.
देता है कि नहीं? हाँ। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? बट ऑफ कोर्स ये बस इस फॉर्मूला को याद रखने का तरीका है. दिस इज नॉट द एक्सप्लेनेशन व्हाई इज इट कमिंग. ठीक है, व्हाई इज इट कमिंग उसका तो प्रूफ है पूरा. ठीक है, दैट विल बी डिवोटिंग अ डिफरेंट क्लास टू, बट दिस इज ओनली अबाउट हाउ टू मेमोराइज फॉर्मूलाज. ठीक है, सो I'll do is I'll just rub this off and voila, you have got two formula. And I'm telling you कि इन दो formulas को use करके you can generate all the six other formula. तो इस वाला formula का condition क्या है? First of all, I told you that x and y both should be what? Positive. Both should be greater than 0. ठीक है, and then you can use the first condition and you can use the second condition. अभी suppose आपको ऐसा question आता है, suppose आपको question ऐसा आ गया कि tan inverse 2 plus tan inverse 3. ठीक है ना? All you see is, अच्छा, are they positive? Yes. है कि नहीं? उनका multiplication करने से कितना आ रहा है? More than 1. Then I'll directly use what? Pi plus tan inverse 2 plus 3 by 1 minus 2 into 3. Yes or no? Yes. So I'll use pi plus tan inverse 5 upon minus 5. है ना? So pi plus tan inverse minus 1. Can I write this? Yes. Or I can write pi minus tan inverse of 1. इसको उधर घुमा के ले जा. तो it will become tan inverse 1 plus tan inverse 2 plus tan inverse 3 equals to pi. Yes or no? Yes. ये बहुत important, बहुत सारे टीचर्स आपको बोलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है याद रखने के लिए. ठीक है, बट आता कहाँ से है? फाइनली यहीं से आ रहा है कि नहीं? इसके जितने भी अलग अलग हैं आइडेंटिटीज मैं सारे आपको बता दूंगा. ठीक है, फर्स्ट ऑफ यू फिनिश ऑफ विद दिस, राइट? अभी tan inverse 2 plus tan inverse 3 किया आपने. ठीक है, all I'll do is just wait, I'll just copy this thing down so that becomes easy. Okay, and we have told that x and y should be greater than 0. Yes or no? Yes. है ना? अभी सोच कि तेरे पास क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है tan inverse 2 minus tan inverse 3. अभी क्या करना है? अभी माइनस के लिए तो हम लोग पढ़े ही नहीं है. पढ़े हैं क्या? नहीं. तो कैसे करना है? इसको प्लस में कन्वर्ट कर देंगे. कन्वर्ट कैसे करेंगे? tan inverse 2 plus tan inverse minus 3. हो जाएगा ना? तो ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो. xy greater than 0 होना चाहिए ना? xy greater than 0 होने चाहिए थे कि नहीं? तो फर्स्ट वाला यूज नहीं कर सकते, है ना? तो चलो तुम्हारे लिए मैं एक चीज करता हूँ. एक्चुअली तुम्हारे लिए नहीं, ट्रिग्नोमेट्री में होता है ये वाला. फर्स्ट के लिए x and y can be anything. अच्छा, x and y can be anything for the first one. ठीक है, only for the second one x should be greater than 0 and y should be greater than 0. Understood? Okay. देख इनकॉर्पोरेट हो गया. हाँ. अब सब के सब अंदर घुस गए कि नहीं? है ना? अब इसका आंसर बता दे क्या हो जाएगा. So it will become what? Tan inverse. Now you have A and you have B. So all I'll do is tan inverse A plus B by 1 minus AB. Right? I'll do this, right? So let me just color code it once. ठीक है, समझ में आया? And I'll just put in the numbers 2 minus 3, 2 minus 3. Answer will become how much? Tan inverse minus 1 by 7. So it is same as minus tan inverse 1 by 7. ठीक है, कुछ नया वाला फॉर्मूला याद रखने की जरूरत पड़ा क्या? नहीं पड़ा, राइट? डायरेक्टली हो रहा है ना? सपोज वी गिव यू अ डिफरेंट नंबर. एक दूसरा वाला ट्राई करते हैं विद द सेम थिंग. लेट अस ट्राई समथिंग लाइक दिस. tan inverse half plus tan inverse minus 1 by 3. है ना?
all you have to do is first check tan inverse plus tan inverse है ना, है ना, उसके बाद ये वाला क्या हुआ, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया ना, तो चेक करो दिस इनटू दिस लेस देन 1 हो रहा है क्या, यस हो रहा है ना, तो फिर कौन सा वाला यूज हो जाएगा, फर्स्ट वाला यूज करके निकाल लेंगे. सपोज यू आर गिवन समथिंग लाइक दिस tan inverse minus half plus tan inverse 1/3, use the same thing, है ना, suppose tan inverse minus 2 plus tan inverse let's say 1/8, you can do the same thing, right? Yeah, but what if both were minus? What if Both of them were negative? Then also we'd use the same thing. suppose both of them are negative, एक both of them are negative करके देख लेते हैं कितना हो रहा है, -1/4 plus tan inverse minus 1/8. अब डिफिकल्ट हो गया ना, because x into y is becoming more than 1, हो रहा है कि नहीं, Second identity. सेकंड आइडेंटिटी, बट वो तो x greater than 0 y greater than 0 के लिए है, फंस गए ना. अब इसमें क्या करना, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, वो माइनस साइन को बाहर ले जा बेटा, इतना हो जाएगा ना. अब माइनस साइन को कॉमन ले ले, माइनस साइन को कॉमन ले ले. What I am trying to tell is with these two formula you can do any questions on tan inverse x plus tan inverse y. समझ में आया? हाँ, समझ में आया ना? ठीक है. Next let's just move on. ठीक है. Next let's just move on. Let us try something like this. Sin inverse x plus sin inverse y. ठीक है. इसका और बस तुम्हें बस इसका याद रखना है, बाकी cos इनवर्स एवरीथिंग इज रिलेटेड. ठीक है, बस इसका याद रखना है. sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y कितना होता है, वी हैव नॉर्मल, अगर हम लोग देखें तो होना चाहिए sin a cos b प्लस cos a sin b. cos a will become this one, right, and sin b, है ना, इतना ही हो रहा है, राइट, है ना. एंड अच्छा, डू यू रिमेम्बर दिस, ये वाला जो चीज पढ़े थे, साइन इनवर्स में क्या यूज होता है, प्लस माइनस पाई माइनस थीटा, है ना. तो नेक्स्ट वाला पाई माइनस थीटा हो जाएगा. हाउ डिड यू नो प्लस पाई लेना है माइनस पाई लेना है? हाँ, क्यों प्लस पाई लेना है माइनस पाई लेना है मैं बता दे रहा हूँ. ठीक है, इसके बाद एक्चुअली आता है प्लस माइनस पाई कब लेना है, जब दो रेंडिशन होते हैं तब नेक्स्ट वाला प्लस पाई ही लेते हैं. अच्छा, ठीक है, whenever there is only 2 branches you take the next one as plus पाई. ठीक है, whenever there are 3 branches I'll then tell you कि प्लस माइनस कैसे लिया जाता है. तब तो दोनों ही लेंगे ना, when you have 3 branches. हाँ, when you have 3 branches तब कब लेते हैं माइनस पाई और कब लेते हैं प्लस पाई वो बता दूंगा. ठीक है, तो जब 2 ब्रांचेस होते हैं always take प्लस पाई, always take what, प्लस पाई. एंड नेक्स्ट इसका याद रखने का एक बहुत सिंपल तरीका है. ऑब्वियसली by default we are taking that x should be greater than 0 and y should be greater than 0. yes or no? Yes. अरे equals to 0 क्यों नहीं ले रहे हैं, अगर equals to 0 होता तो डायरेक्ट ही आंसर निकाल देते ना, sin inverse 0 plus sin inverse 0 कितना होता, 0, है ना. तो we are trying for positive, and positive sin inverse का याद रखने के लिए कैसे याद रखना होता है, take a unit circle centered at o, o, and unit circle है मतलब रेडियस क्या होगा 1. तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x² plus y² equals to 1. ठीक है, then we use the first identity when x and y lie inside this unit circle, when x and y lie inside this unit circle, है ना. इस सर्कल के अंदर अगर लाई करेंगे x और y then we will take it this one. ठीक है, तो इसका कंडीशन क्या हो जाएगा, x² plus y² लेस देन और इक्वल्स टू 1, लेस देन और इक्वल्स टू 1. अगर अंदर या पेरिफेरी पे लाई करेंगे देन वी विल टेक द फर्स्ट वन, एंड सेकंड वन हम लोग तब यूज करेंगे अगर बाहर लाई कर रहा है तो. ठीक है, सो इट विल बिकम x² plus y² ग्रेटर देन 1. समझ में आया? ऑब्वियसली वी आर यूजिंग x मोर देन 0 एंड y मोर देन 0.
ओके समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? इसमें हाँ x एंड y एनीथिंग नहीं है, एनीथिंग सिर्फ tan इनवर्स में लगता है, एनीथिंग सिर्फ tan इनवर्स में लगता है जब xy इज लेस देन 1, ठीक है? बाकी ठीक हर एक में, बाकी हर एक में वी विल यूज द डिफॉल्ट केस, बाकी हर एक में विल यूज द व्हाट, द डिफॉल्ट केस। डिफॉल्ट अंडरस्टूड दिस? यस इज गेटिंग क्लियर? ओके, या नेक्स्ट बस ये याद रखना था, देख tan इनवर्स में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ही याद रखना है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y याद नहीं रखना है, ठीक है? क्योंकि सारे ठीक कंडीशंस है अंदर घुस जाएंगे। लेकिन बस sin इनवर्स है जिसमें तेरे को sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है? मेहनत वाला ठीक काम है, ठीक है? लेकिन कुछ मेहनत नहीं है, एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम जो भी हम लोग अभी पढ़े ना ऊपर में, एग्जैक्टली सेम है। याद रखने का तरीका क्या है? मेन वाला क्या होता है? sin a cos b माइनस cos a sin b, राइट? एंड सॉरी साइन इनवर्स, एंड नेक्स्ट वाला क्या होगा? पाई माइनस साइन इनवर्स sin a cos b माइनस cos a sin b, एकदम एग्जैक्टली द सेम, ठीक है? अगेन इसका कंडीशन क्या है? सर्कल के अंदर लाई करना चाहिए। दूसरे वाले का कंडीशन क्या है? सर्कल के बाहर लाई करना चाहिए। और ये सर्कल वाला कंडीशन कहाँ से आता है? सर्कल वाला कंडीशन तेरे को तब समझ में आएगा अगर हम लोग इसको डेराइव कर रहे होंगे। जब डेराइव कर रहे होंगे तब तेरे को पता चलेगा y x square plus y square should be less than 1, बट वी आर नॉट डेराइविंग इट, हम लोग बस याद रखने का तरीका देख रहे हैं, राइट? हाँ ओके है ना? अच्छा, और एक कंडीशन जो यहाँ पे आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। एक चीज पता मेरे को, साइन इनवर्स एनीथिंग विल बी बिटवीन व्हाट एंड व्हाट? pi It will by be 2 between minus pi minus by 2 pi and by 2 pi by 2 pi by 2. So can I write minus of that will also lie between minus pi by 2 and pi by 2? या है ना? एंड उसके साथ अगर मैं पाई प्लस कर दे रहा हूँ, मतलब माय आंसर इज लाइंग बिटवीन pi pi by by 2 to 2 3 pi and by 3 2 pi by 2. Yes or no? Which means my this answer is positive, है ना? Which means ये जो भी stuff मैंने लिखा है that is indeed positive or not? yes That is positive. But sin inverse x minus sin inverse y may be positive or negative, right? May be positive or negative कि नहीं? तो यहाँ पे तेरे को इंश्योर करना है, सिंस RHS तेरा पॉजिटिव हुआ है, LHS को भी पॉजिटिव करना है, ठीक है? तो पॉजिटिव कैसे करेंगे? अगर x y से बड़ा हो गया तो साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y से बड़ा हो जाएगा कि नहीं? Then this will become positive, हाँ है ना? तो just one additional case that you'll have to remember here is x should be more than y, x greater than y है ना? अभी सोच, तेरे को क्वेश्चन इस टाइप का आ गया कि साइन इनवर्स 0.6 माइनस साइन इनवर्स 0.8, साइन इनवर्स 0.6 माइनस साइन इनवर्स 0.8, है ना? अभी देख, इज x मोर देन y? नो बट बना देंगे उसको, माइनस बाहर लेते हैं बन गया। अब x मोर देन y हो गया। या नाउ x हैज बिकम मोर देन y, है ना? और खुद सोच के बता, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर शुड बी x square plus y square should be inside the greater than the circle greater than the circle. अरे x square plus outside y the square will circle be exactly 1 ना? in this condition अरे yeah 0.64 प्लस yeah 0.36 कितना हो जाएगा? 0.64 plus 0.66 एग्जैक्टली One. 1। अगर एग्जैक्टली 1 हो रहा है तो डजंट मैटर कौन सा फॉर्मूला यूज करो, सेम ही आंसर आएगा। बट ओके, अंडरस्टूड राइट? कितना हो जाएगा इसका आंसर? माइनस कोई सा भी फॉर्मूला लगा ले, साइन इनवर्स दैट प्लस दैट, जो भी लगाना है लगा ले, है कि नहीं? Okay. कर सकते हैं, ठीक है? So you Yeah, do not need done. to know any other conditions. You do not need to know any other conditions. बस sin inverse x plus sin inverse y क्या होता है? sin inverse x minus sin inverse y क्या होता है? ठीक है? और अगर आपको डिफिकल्टी लग रहा है ये समझने के लिए कि पाई माइनस क्यों हुआ, तो मैंने क्या बताया था? It is either equals to plus minus pi minus theta, always minus theta, always minus theta. तो sin के सामने माइनस साइन लग गया, और सिंस एक ही रेंडिशन है तो प्लस पाई यूज करेंगे। अगर दूसरा वाला आएगा तो माइनस पाई यूज किया जाएगा विद द कंडीशन, एंड दैट आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। ओके समझ में आया?
So this is how you learn. So I have practically I have just told you 3 formula. ठीक है, ब्रांच फॉर्मूला. ये पहला वाला ब्रांच फॉर्मूला था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का. ठीक है, इसका ब्रांचिंग इज वेरी सिंपल. नेक्स्ट सेकंड वाला है sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का. थर्ड वाला है sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y का. ठीक है, यस. समझ में आया? बस हाँ. इन तीनों में ही कष्ट था. अभी जिंदगी का सारा कष्ट, तेरा दुख दर्द दूर हो गया. ठीक है, बस ये ही 3 चीज है जो तेरे को समझना है. थोड़ा सा प्रैक्टिस करेगी तो हो जाएगा. बाकी सारे के सारे चीज इजी है. बाकी सारे के जितने भी अभी फॉर्मूला बताऊंगा ना, तो अभी मैथ्स कर करके निकाल देगी. ठीक है, बस 3 चीज था जो डिफिकल्ट था. tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स y, sin इनवर्स प्लस sin इनवर्स y, sin इनवर्स माइनस sin इनवर्स y. इसको छोड़ के कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. ठीक है, लिख लिया इसको? या. हाँ, तो अब देख, अब क्या करेंगे. अब बहुत सिंपल है. cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y. अच्छा, बाय द वे, पता है ना डिफॉल्ट कंडीशंस क्या है? x एंड y शुड बी पॉजिटिव ऑलवेज. मैं नहीं भी लिख रहा हूं तो इट इज ऑलवेज इंडीड x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0. है कि नहीं? ये डिफॉल्ट कंडीशन है. ठीक है, इसके बारे में बस ये डिफॉल्ट कंडीशन कहां पे हम लोग छोड़ सकते हैं? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में. वो भी जब xy इज लेस देन 1. ऊपर वाले ब्रांच में. ठीक है, जब xy मोर देन 1 हो जाएगा तो नेक्स्ट वाले को यूज कर सकते हैं. ठीक है, माइनस प्लस का एडजस्टमेंट करके नेक्स्ट वाले को यूज कर लेंगे. ठीक है, अभी एक चीज देखो, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y. तो cos a प्लस सॉरी cos ऑफ a प्लस b इज cos a cos b माइनस sin a sin b. ये तो पता है ना? दिस तो ऑलरेडी यू नो, है ना? दिस तो ऑलरेडी यू नो. यस. है कि नहीं? अब एक चीज देख, दिस इज वेरी सिंपल. इसमें कोई भी कंडीशन नहीं है. ऑल द कंडीशन यू हैव इज x एंड y शुड बी पॉजिटिव. कुछ कंडीशन नहीं. अभी सब कुछ आराम से मैथ से हो जाएगा. कुछ भी कंडीशन नहीं है. सिंपल है कि नहीं? और एक चीज इसका तेरे को याद रखना है, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का. अगेन x और y को हम लोग क्या पकड़ रहे हैं? ग्रेटर देन 0. पॉजिटिव, बिकॉज दैट इज आवर डिफॉल्ट केस. यस और नो? सो इट विल बिकम व्हाट? cos इनवर्स xy, obviously cos a minus b is cos a cos b plus sin a sin b. yes or no? है ना? बस यहाँ पे भी थोड़ा सा बस एक कंडीशन याद रखना होगा जो हम लोग sin इनवर्स x minus sin इनवर्स y में याद रखे थे. सिंपल सा कंडीशन. जस्ट टेल मी cos inverse of anything will lie between, not anything obviously within its domain, it will lie between 0 and pi ki nahi? 0 to pi ki nahi? Which means my right hand side has become positive. Which means you should ensure that your left hand side should become positive. अब पॉजिटिव कब होगा? जब दिस क्वांटिटी इज मोर देन दैट क्वांटिटी. है ना? तो क्या हो जाएगा? x greater than y. ना, x less than y because cos is a decreasing function. cos decreasing function है ना? हाँ, है ना? अरे cos इनवर्स 0.6 और cos इनवर्स 0.8 में बड़ा कौन सा होगा? 0.6. 0.6 बड़ा होगा. बड़ा होगा कि नहीं? है ना? क्योंकि cos एक डिक्रीजिंग फंक्शन था. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? बस याद रखना कि x शुड बी लेस देन y. बस इतना. अच्छा, आप खुद सोच ले, अगर x इक्वल्स टू y हो गया तो ये दोनों तो कट ही जाएगा ना. है ना? तो जो कंडीशन मैं बता रहा हूँ बस वो याद रखना और कुछ भी याद नहीं रखना है. ठीक है, एंड ऑब्वियसली डिफॉल्ट कंडीशन क्या था? x y ग्रेटर देन 0. ये डिफॉल्ट कंडीशन है कि नहीं? okay. है कि नहीं? बस यहाँ पे तेरा ट्रिग्नोमेट्रिक प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वल्स टू ट्रिग्नोमेट्रिक खत्म हो गया. इतना में खत्म, स्वाहा. ठीक है, बस यहाँ पे खत्म हो गया. अभी मल्टीपल एंड सब मल्टीपल रेशियोज करेंगे जिसमें मैं ट्रिक बता दूंगा, एक तो करके छोड़ दूंगा, बाकी सब तू कर लेना. ठीक है, बाकी सब तो ऐसे हो जाएगा. ठीक है, ट्रिक क्या है? ये ट्रिक मैंने ही इन्वेंट किया है, कहीं बुक में मेरे को मिला नहीं है, बट बहुत सिंपल है तेरे को मेमोराइज करने के लिए. ठीक है, सपोज तेरे को यूज कर रही है 2 sin इनवर्स x. ठीक है, 2 sin इनवर्स. अच्छा, उससे पहले थोड़ा सा मैं तेरे को ये दे देता हूँ. ठीक है, मैं तेरे को थोड़ा सा दे देता हूँ. सपोज दिस इज माई डोमेन. ठीक है, दिस इज माई डोमेन. माई डोमेन इज फ्रॉम -∞ to ∞. ठीक है, याद रख
the moment I am defining a critical point anywhere I'm defining a critical point, suppose I'm defining a critical point at +7, उसका mirror image will also become a critical point. ठीक है, whatever critical, हाँ नहीं inverse ratios नहीं, whatever critical point I'm deciding, right, its mirror image will become critical point, so -7 will also become a critical point. ठीक है. Similarly, you tell me if infinity to infinity है, मैं 1/5 डिफाइन किया तो दूसरा क्या हो जाएगा क्रिटिकल? -1/5. अगर मैंने इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में 1/√3 डिफाइन किया तो दूसरा क्या हो जाएगा? -1/√3. ठीक है. अगर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में मैंने 0 को डिफाइन किया तो दूसरा क्या हो जाएगा? ओवरलैप हो गया 0 पे. ठीक है, बस ये चीज याद रखना है. ये याद रखने का क्या है, तो समझ में आ रहा है, राइट? ऑल यू आर डूइंग इज यू आर टेकिंग द मिरर इमेज अलोंग द वाई एक्सिस. ये वाई एक्सिस था, उसके अलोंग मिरर इमेज ले लिए. किस क्वेश्चन में मतलब किस कंडीशंस के लिए ऐसे क्रिटिकल अभी पॉइंट्स बताऊंगा, अभी बताऊंगा, रुक जा. बस ये सीख लेगी क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते कैसे. समझ में आया ना? क्रिटिकल पॉइंट निकालते कैसे, बस ये समझ में आया तो बस. तो और हो गया, और क्या, खत्म, गेम खत्म है. ठीक है, बहुत सिंपल है ये गेम. 2 ठो मैं करके दिखाऊंगा, 3 ठो मैं तेरे से पूछूंगा. ठीक है, जितना भी ट्रिग्नोमेट्री का बुक है सब उठा के साइड में रख दे, कुछ भी नहीं चाहिए. सिंपल यूज करेंगे 2 sin inverse x. 2 sin inverse x विल बी डूइंग फॉर 2 sin inverse x. ठीक है, इक्वल्स टू लिख देना, ब्रांच बना देना. ठीक है, सब कंडीशन अपने आप फिट हो जाएगा. ठीक है, क्या करेगी, 2 sin inverse x का मैं निकाल रही हूं, इसका ब्रांच कर देना. एंड देन यू टेल मी 2 sin inverse x, it is analogous to sin 2 theta, right? Yeah. And sin 2 theta is how much? 2 sin theta cos theta. 2 sin theta cos theta, which means it will become 2 sin theta is x, cos theta will become 1 minus x square. ये तो पता है ना, ये बेसिक चीज पता थी. हाँ, अब जो भी चीज तूने यहाँ पे लिखी है ना, जो भी चीज तूने यहाँ ऊपर में लिखी है, कॉपी कर और पेस्ट कर दे. ठीक है, नीचे और एक बार कॉपी कर और नीचे पेस्ट कर दे. अब देख, यहाँ पे आता है सबसे मेन चीज. ठीक है, नीचे में लिखना साइन इनवर्स एक्स. नीचे में क्या लिखना? साइन इनवर्स एक्स. हमेशा कुछ भी दिया होगा नीचे, मतलब उसका अगर tan इनवर्स x दिया होगा तो tan इनवर्स x लिखना है, cos इनवर्स x दिया है तो cos इनवर्स x लिखना है. जैसे यहाँ पे 2 sin इनवर्स x दिया था तो मैं 2 जस्ट sin इनवर्स x लिखा. ठीक है, अभी एक चीज बता, sin इनवर्स x कहां से कहां तक लाई करता है? -π/2 to π/2. -π/2 to π/2 with close brackets. ये सुन, तेरे को क्या करना है कि ये वाला जो नंबर है 2 times this, इसको भी -π/2 से π/2 के अंदर घुसा देना है. इसको भी कहां से कहां तक घुसा देना है? -π/2 से π/2, है कि नहीं? तो तेरा देख सिंपल हो गया. अब 2 times sin इनवर्स x -π/2 से π/2 तक अप्लाई किया, सिंपल है. तो तू मेरे को बता, sin इनवर्स x कहां तक अप्लाई करना चाहिए? -π/4 to π/4. -π/2 to π/4, पक्का ना? मतलब तेरा x कहां तक लाई करना चाहिए? -1/√2 से √2. -1/√2 से √2 लाई करना चाहिए कि नहीं? कुछ नहीं, साइन अंदर चला गया है ना, एंड इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, सो -1/√2 to √2, सॉरी 1/√2 to 1/√2, है ना? जो ये वाला आया ना, ये सबसे पहले प्रिंसिपल ब्रांच पे डाल दे. तो इसका कंडीशन क्या हो गया? x बिलोंग्स टू -1/√2 to 1/√2. याद रखना पड़ा क्या? नहीं याद रखना पड़ा ना. अब मैजिक देखेगी, अभी मैजिक होगा, यहाँ पे शुरू नहीं हुआ है. मैजिक क्या है, अब तू नंबर लाइन अपना ड्रॉ कर ले. ठीक है, और मेरे को एक तो चीज पता, x कहां से कहां तक लाई कर सकता है? -π/2. थपड़ा दूंगा, लो देख. -1/√2 to 1/√2. अबे गधी, ऐसे डोमेन बता x का.
क्या यही तो है? वो तो -1 इसके लिए है, वो तो इसके लिए है। Oh. मेन इसका एक्स का डोमेन क्या है? -1 to 1 फिर इतना देर क्या लगा रही है? तो -1 से 1 1, राइट? तो एक्स का डोमेन क्या है? -1 से 1। फिर से -1 से 1, है ना? हाँ, वहां उसमें पे से तूने इतना क्रिटिकल पॉइंट क्या डिफाइन किया था? 1/√2 -1/√2। ठीक है, वो लोग मिरर इमेज आ गए। अब एक तो चीज देख, तूने ये वाला पार्ट डिफाइन कर दिया है ना? हाँ, बाकी है की ना? 3 ब्रांच। बाकी और कितने ब्रांचेस बचे? 2। 2 ब्रांचेस बचे, पक्का? हम्म पक्का बचे कि नहीं? ये जो ब्लैक कलर का मैंने आइटम बनाया ना, जो तेरा प्रिंसिपल रेंज डिफाइन किया, उसको मैं आलू बोलूंगा। क्या बोलूंगा? आलू। ठीक है, क्योंकि तू वेजिटेरियन है ना? नॉन वेजिटेरियन होती तो चिकन बोलता, है ना? नाइस ना? अब देख, आलू के लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा माइनस होता है, आलू के राइट हैंड साइड में हमेशा क्या होता है? प्लस। ये याद रखना है, लेफ्ट में माइनस। ये तो तेरा आलू है ना, इसको एज 0 पकड़, इसको एज 0 पकड़। 0 के लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर्स, 0 के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स। समझ में आया? ठीक है। आलू जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है, आलू जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज बता, सबसे पहले एक तो चीज पता चल गया तेरे को, 3 ब्रांचेस है। 3 ब्रांचेस है तो तेरे को 3 बार लिखना जरूरी था। जरूरी था कि नहीं? लिख दिया। लिख दिया। अब एक चीज देख, मैजिक होगा शुरू, स्टार्ट हियर। मैंने क्या बताया था? साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है? प्लस माइनस पाई माइनस थीटा। माइनस थीटा बताया था कि नहीं? ये देख, ये तेरा ओरिजिनल थीटा था, तो बाकी दो तो क्या हो जाएंगे? माइनस थीटा, है ना? प्रिंसिपल वाले को थीटा पकड़, बाकी दो तो क्या हो जाएगा? माइनस थीटा। अब यहाँ पे या तो प्लस पाई लगेगा या तो माइनस पाई लगेगा, है कि नहीं? गेम बस उतना है, प्लस पाई या माइनस पाई। समझ में आया? अब खुद देख ले, -1 से 1/√2 तक कौन सा साइन लग रहा है? नेगेटिव। तो क्या साइन होगा? -पाई। So can you write when x is belonging from -1 to -1/√2? And यहाँ पे कौन सा साइन लग रहा है? पॉजिटिव, प्लस पाई। तो क्या हो जाएगा? When x belongs to 1/√2 to 1। कुछ भी याद रखना पड़ा क्या? 2 मिनट लगेगा निकालने के लिए। बस तेरे को क्या याद रखना है? ये वाला चीज याद रखना है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? सिंपली मैं और एक करता हूँ, उसके बाद तेरे को बोलूंगा बाकी सब करने के लिए। ठीक है? और एक करता हूँ, फिर मैं बोलूंगा तेरे को सॉल्व करने के लिए। सोच, तेरे को किसी ने निकालने बोल दिया सॉरी, हाँ, 3 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स। 3 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स, मेहनत वाला काम है। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स लिख दिया है, तो नीचे में क्या लिख देगी? फर्स्ट स्टेप क्या है? सेम चीज लिख देगी विद द 3 हटा के, है ना? अब साइन इनवर्स एक्स कहां से कहां तक लाई करता है? -π/2 से π/2 तक, है ना? तो तेरे को इसको भी -π/2 से π/2 तक लाई करवाना है ना? तो तू खुद सोच के बोल मेरे को, साइन इनवर्स एक्स कहां से कहां तक लाई करेगा फिर? अगर 3 टाइम्स -π/6 से π/6, तो तेरे को प्रिंसिपल रेंज क्या मिला? x belonging to π/6 -1/2 to 1/2. हाफ टू हाफ, दैट्स योर प्रिंसिपल रेंज, दैट इज योर आलू, है ना? और साइन, दिस इज सेम है साइन 3 थीटा ना। साइन 3 थीटा का क्या होता है? साइन इनवर्स 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, है कि नहीं? और ये कब होगा? रेंज x बिलोंग्स टू -half to half. अरे वाह, लौंडिया सीख गई। ठीक है, अब मेरे को बता, नीचे मैं और भी 2 बार लिख दूंगा क्योंकि और 2 ब्रांचेस होंगे, मेरे को समझ में आ गया, लिख देते हैं, है ना? आलू के लेफ्ट हैंड साइड में क्या जाएगा? माइनस, राइट साइड में क्या जाएगा? पॉजिटिव, है ना? अब मेरे को बता दे, यहाँ पे मेरे को क्या लिखना चाहिए? अगर मैं लिख रहा हूँ
फ्रॉम x बिलोंगिंग टू -1 टू हाफ अगर मैं लिख रहा हूँ तो क्या साइन आना चाहिए? थीटा माइनस पाई। अच्छा, माइनस थीटा माइनस पाई, ऑब्वियसली थीटा तो नेगेटिव ही होगा ना. वी आर स्टिल यूजिंग द सेम थिंग, वी आर स्टिल यूजिंग सेम थीटा, है ना. साइन इनवर्स के लिए क्या होता है? माइनस थीटा होता है, तो माइनस माइनस मैंने लगा दिया. अभी गेम है कि प्लस होगा कि माइनस, तो क्या होगा? पहला वाला माइनस पाई, दूसरा वाला प्लस पाई. x बिलोंग्स टू हाफ टू 1. याद रखना पड़ा क्या? ये सारे ये सब कुछ याद रखना पड़ा क्या? अपने आप हो रहा है कि नहीं? गेम बस इतना सिंपल है. गेम तेरे को मैं सिखा दिया हूँ, गेम तेरे को खुद से अभी करना है. ठीक है, 1 by 1 मैं तेरे को क्वेश्चन दूंगा, 1 by 1 सॉल्व करते जा. ठीक है. सपोज मैं तेरे को क्वेश्चन दे रहा हूँ, सपोज मैं तेरे को क्वेश्चन दे रहा हूँ 2 tan इनवर्स x. अरे हक दिया. 2 tan इनवर्स x. क्या क्वेश्चन दिया हूँ? 2 tan इनवर्स x. अब मेरे को नीचे में क्या लिखेगी बता दे. यहाँ पे क्या लिखेगी? बहुत अच्छा, tan इनवर्स x लिख दिया. और मेरे को बता दे इसका रेंज क्या है? -1 to 1. थबड़ा दूंगा ना, लाल हो जाएगी. x का -1 to 1. -1 to 1 होता है ना tan इनवर्स x में. यस. वाह, अबे सार्काज्म समझ गधी. सार्काज्म मैंने पूरा निकाल लिया x तक. गधी. tan इनवर्स में माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होता है, -1 से 1 साइन और कॉस में होता है. क्या भूल चुके हो? What are you asking? आई एम मैंने आस्किंग यू. निकाल लिया x का x belongs to -1 to 1. अच्छा, x बिलोंग्स टू 1 to 1 निकाला है तूने. अरे बाबा, क्रोनोलॉजिकली चलना. x बिलोंग्स टू 1 to 1, आंसर क्या हो जाएगा? कर लिया ना नीचे तक. हाँ बता दे. -1 to 1 में कितना हो जाएगा आंसर? 2 tan थीटा बाई 1 tan inverse 2x 1 minus x square. 1 minus x square या 1 plus x square? ठीक से सोच के बोल. 1 minus होता है. 1 माइनस हो जाएगा. अब एक चीज देख, ये तो सिखाने का जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली तू सीख जाएगी. यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो डिनोमिनेटर को मैं 0 नहीं कर सकता हूँ, तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट्स होगा ना. हाँ. है ना. एंड एक चीज करते हैं, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, -1 से 1 के बीच में तेरा आलू चला गया. यहाँ पे नेगेटिव साइन, यहाँ पे पॉजिटिव साइन, है ना. अब मेरे को बता, अच्छा tan इनवर्स का प्रॉपर्टी क्या था? प्लस माइनस पाई प्लस थीटा. थीटा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. एंड दिस इज योर थीटा, दिस इज योर थीटा. ठीक है, तो उसी चीज को 3 बार लिख देते हैं, क्योंकि 3 बार हो गया ना. 1 2 3. tan इनवर्स 2x by 1 minus x square. tan इनवर्स 2x by 1 minus x square हो गया. है ना. तो अब मेरे को बता दे क्या लिखेंगे यहाँ पे? minus pi for x less than -1 and plus for y x less than -1. हो गया. तो छा जा रही है बे. वाह. सुनते तो हो नहीं पूरा. क्या सुनते तो हो नहीं पूरी बात. सुन तो रहा नहीं क्या? मैं तेरे को पूछ रहा हूँ x का डोमेन क्या है, तू मेरे को -1 से 1 बता रही है. मैंने सुना नहीं ना, मैं कर के थी. तो किसकी गलती है? मेरी गलती है कि तेरी गलती है? अच्छा, सिमिलरली मेरे को बता दे 3 tan इनवर्स x का. अच्छा tan इनवर्स, अच्छा tan 3 थीटा का क्या होता है? tan 3 tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सॉरी माइनस tan क्यूब थीटा, माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. ये तो पता है ना? है ना. अगर नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ, अब खुद सोच ले. यहाँ पे प्रिंसिपल रेंज क्या हो जाएगा? x शुड बी बिटवीन माइनस. ओके, देख 3 tan इनवर्स x शुड बी बिटवीन -π/2 एंड 1/√3. तो एकदम मस्त. -π/2 से π/2 होना चाहिए, तो tan इनवर्स x शुड बी π/6 से π/6, -π/6 से π/6, है ना. और सिंस tan इंक्रीजिंग फंक्शन है, डायरेक्टली मैं ऐसे ही डाल सकता हूँ. तो कितना हो जाएगा? x बिटवीन -1/√3 टू 1/√3. तो यहाँ पे x बिटवीन कहाँ से कहाँ तक गया? बता रही. -1/√3 से 1/√3.
then अरे we यार should मैंने यहाँ पे इतना बड़ा मिस्टेक किया है, -3x² होगा ना ये, बोल भी ठीक नहीं है, रही है। ओपन ब्रैकेट्स। ओपन ब्रैकेट्स, अब समझ में आया ये ओपन ब्रैकेट्स क्यों होगा, है ना। और वही वैसे ये सब भी क्रॉस tan चेक कर इनवर्स सकती की है रेंज ये, में हाँ भी। ये सब चीज तू क्रॉस चेक कर सकती है कि अगर मेरा जैसे tan इनवर्स में ओपन ब्रैकेट आना चाहिए तो यहाँ पे मेरा 1 - 3x² आना चाहिए था, 1 - x² नहीं होता है कि नहीं। तो these things you can like cross check and you can see. Next, this is your theta, theta cannot be negative, है ना। So क्या हो जाएगा, tan inverse 3x - x³ by 1 - 3x² and tan inverse 3x - x³ by 1 - 3x²। थीटा तो नेगेटिव नहीं हो सकता तो इसको प्लस लगा देंगे। नेक्स्ट -1/√3, 1/√3, दिस बिकम्स इंफिनिटी, दिस बिकम्स माइनस इंफिनिटी। ये हो गया तेरा आलू, ये हो गया प्लस, सॉरी ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, है ना। और क्या यूज करते हैं, पाई, तो -पाई प्लस अगर लिखेंगे तो x लेस देन 1/√3, पाई प्लस लिखेंगे तो x ग्रेटर देन 1/√3। हो रहा है खुद से, यस। सेकंड हो रहा वाले है। में x लेस देन -1/√3 है। सेकंड वाला में क्या है, हाँ x less than -1/, सॉरी, समझ में आया कैसे कर रहे हैं। यप। डिफिकल्ट है क्या, ज्यादा नहीं है भाई, ट्रिक समझना है, ट्रिक समझ के पीट देना है कि नहीं। समझे। अच्छा मैं और दो तेरे से करवा देता हूँ जस्ट इन केस, ठीक है। इजी वाला करते हैं अभी, अब तो इजी वाले ही बचे और क्या ही बचा, 2 cos इनवर्स बचा, 3 cos इनवर्स बचा, ठीक है ना, क्योंकि tan इनवर्स तो कर दिया। तो क्या करते हैं, 2 cos इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x, दोनों का निकाल देते हैं, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब मेरे को बता दे प्रिंसिपल रेंज के लिए x शुड बी वेयर टू वेयर, देख cos इनवर्स x should lie between 0 to pi, right, है ना, and so this quantity should also lie between 0 to pi, so cos inverse x now lies between pi/2 to 0, but since cos is a decreasing quantity, ये वाला इधर चला जाएगा cos 0 जब आएगा, वो वाला इधर चला जाएगा जब cos 0 आएगा, सॉरी cos pi/2 आएगा, तो क्या हो गया, between 0 to 1, between 0 to 1, समझ में आया क्या किया हूँ, because it is decreasing, है ना। अभी पहले तो नंबर लाइन बना ले, फिर खुद को पूछ कि x का एक्चुअली डोमेन क्या था, -1 से 1 था ना, cos है, उसमें मेरा क्रिटिकल पॉइंट कहाँ पे आया है, 0 पे, 0 to 1, है ना, 0 to 1 इज माई क्रिटिकल रेंज, आया कि नहीं, दिस इज माई आलू, दिस इज माई 0, है ना। सो 2 cos इनवर्स दिस, ये क्या होता है, cos इनवर्स क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, x²-1, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, है ना। तो यहाँ पे ब्रांच क्या हुआ, 0 to 1, ये सुनो, एंड यहाँ पे सिर्फ माइनस लगेगा क्योंकि प्लस के लिए तो जगह ही नहीं है, प्लस के लिए जगह है क्या, नहीं है, तो क्या हो जाएगा, अच्छा cos इनवर्स का क्या होता है, cos इनवर्स का होता है 2 पाई प्लस माइनस थीटा, तो यहाँ पे 2 पाई तो पॉजिटिव है, ये प्लस या माइनस साइन कहाँ पे लग रहा है, थीटा पे, तो यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस, हो गया, सिंपल था, कुछ भी याद रखने का जरूरत पड़ा क्या, नहीं, है ना। मजा आएगा भी 3 cos इनवर्स x, ये मेरे को सबसे मस्त लगता है क्योंकि दिस इज एक्चुअली कूल लाइक मी, ठीक है, ठीक, सॉरी। अच्छा सिमिलरली मेरे को अब बता, 3 cos इनवर्स x शुड लाई बिटवीन व्हाट टू व्हाट, 0 to pi. 0 to pi, so cos inverse x should lie between pi/3 to 0, so that means x, since cos is a decreasing function, ये वाला इधर आ जाएगा, cos 0 हो जाएगा, सर cos pi/3 हो जाएगा, cos pi/3 equals to half होता है, ये हमने कहीं ना कहीं तो पढ़ा था, एंड ये हो जाएगा 1, वाओ व्हाट ए, है ना, सर कैसे किया आपने। अच्छा अब मेरे को बता, -1 से 1 तक जाता है कि नहीं, Yes. अब तेरा क्रिटिकल पॉइंट कट गया है कहाँ पे, हाफ पे, 1/2. तो और एक महाशय कहाँ आने चाहिए,
माइनस हाफ में आना चाहिए कि नहीं? तेरा आलू बना कहाँ पे सर? हाफ 1 आलू वहां पे बना ना, तो पहला वाला तो लिख देते हैं। cos 3 थीटा क्या होता है? cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये तो वाचा, ये तो सिंपल है रे, है कि नहीं? है कि नहीं? है ना? एंड दिस इज व्हेन x बिलोंग्स टू हाफ टू 1 और नॉट। अब मजा आएगा कि आलू तो यहाँ बन गया, अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन क्या आएगा? अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन क्या आएगा? ठीक है, बट एज यूजुअल कुछ याद नहीं रखना है। इफ दिस इज योर जीरो, इफ दिस इज योर जीरो, माइनस यहाँ आना चाहिए, प्लस यहाँ आना चाहिए। तो तेरा माइनस साइन तो यहाँ पे आया, ये प्लस साइन घूम के चला गया वहां पे। ऐसे कैसे? अरे बाबा, ये जो तू नंबर लाइन को -1 से 1 तक पकड़ रही है ना से, मैं इसको एज अ सर्कल देख रहा हूँ। अच्छा, ओके। ठीक है, तेरा आलू यहाँ पे आया था, है ना? उसके लेफ्ट साइड में माइनस, उसके राइट साइड पे प्लस। या इतना भी याद नहीं रखना है भाई, इतना मेहनत नहीं करना है। जस्ट मेरे को बता, आलू, आलू के लेफ्ट साइड में माइनस, आलू के राइट साइड में प्लस, ठीक है ना? तो ये प्लस कहीं पे बैठा नहीं, इसको कुछ मिला नहीं, तो आके यहाँ पे बैठ जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है, इतना मेहनत नहीं करना है, क्योंकि दिस इज नॉट द करेक्ट डेरिवेशन। ये डेरिवेशन नहीं है, ये बस अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ऐसा फॉर्मूला याद रखना इजी है। दिस इज वन ऑफ द मेथड्स दैट आई हैव क्रिएटेड, क्योंकि मेरे को बहुत डिफिकल्टी होती थी कुछ मेमोराइज करने के लिए। सो आई ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट सम लॉजिक, कि किस लॉजिक से सारे के सारे फॉर्मूलाज को मैं कपल कर सकता हूँ, एंड वो लॉजिक में याद रखूंगा। तो बस ये लॉजिक याद रख, ठीक है? ऑलराइट। है ना? ये करेक्ट मेथड, मैं 100% बता रहा हूँ, करेक्ट मेथड नहीं है। क्यों ये डेराइव हो रहा है? ये बस एक मेथड है, कैसे याद रखते हैं, है कि नहीं? अरे चंपा, समझ रही कि नहीं? वाचे, ठीक है। सो अब मेरे को बता दे क्या हो जाएगा आंसर। cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, एंड 2 पाई जो था वो तो पॉजिटिव रहेगा, प्लस माइनस कहाँ पे आता है? थीटा में, है ना? तो द मोमेंट आई राइट दिस इज बिटवीन माइनस हाफ टू हाफ, this becomes minus, and the moment I write this -1 to -half, this becomes plus. Hence proved, khatam game. What A? समझ में आया? वेरी नाइस। ठीक है, कुछ भी याद रखना पड़ा क्या? ये देख, मैं तेरे को बता रहा हूँ, अभी तेरे को बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा होगा कि हाँ ये तो हो जाएगा, वाते सर ने बता दिया। घर पे जाके 3-4 बार प्रैक्टिस करना, ठीक है? द मोमेंट यू प्रैक्टिस ना, तेरे को ये सब करने का कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगा। यू वोंट इवन हैव टू लिफ्ट अप द पेन एंड डू इट। ऑल यू विल बी डूइंग इज माइंड में, हाँ 3 है मतलब π/3 आना चाहिए, एंड 0 आना चाहिए, मतलब हाफ से 1, प्रिंसिपल रेंज निकल गया, उसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव, उसके राइट साइड में पॉजिटिव, बस इतना खत्म। ठीक है, सिर्फ क्या चीज याद रखना है? याद बस तेरे को ये चीज रखना है, 2 पाई प्लस माइनस थीटा फॉर cos। बस tan का याद रखना है, sin का याद रखना है, cos का याद रखना है, गेम खत्म, गेम खत्म। ठीक है, अच्छा हुआ कि नहीं? हुआ ना? हुआ ना? अच्छा, कॉपी पेस्ट हो गया, तो मैं नेक्स्ट वाला पेज पे जा रहा हूँ, नेक्स्ट वाला पेज पे। हाँ, अभी यहाँ पे, हाँ, like 80% formulas you have understood, just 20% is left। 20 मतलब 2 फॉर्मूला और याद रखना है, ठीक है? वो भी सेम ही लॉजिक से हो जाएगा बेटा। किस लॉजिक से होगा? सेम लॉजिक से हो जाएगा, ठीक है? दैट इज, अभी तक हम लोग कर रहे थे, अच्छा अभी हो जाएगा tan इनवर्स टू रेस्ट, tan इनवर्स टू रेस्ट वाले फॉर्मूलास करेंगे। जैसे 2 tan इनवर्स x आई वांट टू राइट, ये तो तुमने कर लिया ना tan इनवर्स से। tan इनवर्स तो तेरे को पता है ना, 2x/1 - x², ये तो पता है तेरे को। एंड बाकी जो भी इसके रेजिमेंट्स है ना? बट नाउ वी विल बी डूइंग tan इनवर्स से sin इनवर्स x में घुसना, tan इनवर्स से sin इनवर्स में घुसना। tan इनवर्स से कहां तक घुसेंगे? sin इनवर्स। तो मेरे को बता दे क्या हो जाएगा? 2 tan थीटा बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। ये तो याद है ना? ये तो याद है। अब सेम लॉजिक सेम है भाई,
कुछ अलग नहीं करना है। थीटा कहां से कहां तक होगा, एक्स कहां से कहां तक होना चाहिए, देख के बता दे। 2 to pi by 2 हे minus पाई 1 बाई 1 टू टू पाई, हाँ अरे हाँ हाँ माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई तो 4 माइनस 1 टू 1, खत्म, खत्म की नहीं। अब मेरे को बता दे क्लोज ब्रैकेट लगेगा कि ओपन ब्रैकेट, क्लोज लगेगा ना, क्लोज लगेगा ना, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर थोड़ी है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होने से ना वो करते थे। अरे चंपा समझ रही है कि नहीं? हाँ आई नो बट tan के ओरिजिनल वाले में तो ओपन ब्रैकेट्स थे ना, माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2, उससे फर्क नहीं पड़ता। उससे फर्क नहीं पड़ता, डाल के देख लेते हैं बेटा, डाल के देख लेते हैं। हाँ, एक्स, उसमें तो प्रॉब्लम हाँ नहीं है तो डाल सकते हैं। हाँ बस, अब 1 डाल के देख लेना, 2 tan इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाई 2 ये है ना, और साइन इनवर्स 1 डालेगी तो 2 बाई 2 1, साइन इनवर्स 1 कितना हुआ, पाई बाई 2, सेटिस्फाई कर गया, डाल सकती है, चल नो वन गिव्स अ डक, ठीक है। अब मेरे को तो चीज बता दे, बहुत सिंपल, टेंशन तो लेना ही नहीं है। एक्स कहां से कहां तक लाई कर सकता था, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, है ना, एक्स का डोमेन देख, -1 to 1 कर लिया। अब -1 to 1 कर लिया है, ये मेरा आलू बन गया है, ये प्लस हो जाएगा, हाँ दिया फिर से, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस 0 है ना, है कि नहीं। अब लेकिन हम लोग किस पे कन्वर्ट कर रहे हैं, साइन इनवर्स में ना, साइन में साइन इनवर्स में कि नहीं, हाँ हाँ तो साइन इनवर्स तो में, उससे साइन इनवर्स का क्या होता है, प्लस माइनस थीटा माइनस, सॉरी प्लस माइनस पाई माइनस थीटा की नहीं, थीटा मिल गया है, नेक्स्ट वाला दोनों माइनस थीटा हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। एंड जो साइन हमें मिलेगा वो किसका साइन है, पाई का साइन है ना, पाई का साइन है ना, ये हाँ माइनस साइन किसका साइन है, पाई माइनस का। पाई, that is when x belongs to minus infinity to -1 and you have plus pi when x belongs to 1 to infinity। समझ में आया कैसे फॉर्मूला याद रखा हमने, ओके ओके पाई ओके माइनस कुछ भी नहीं था भाई, कुछ भी नहीं था, था क्या, नहीं, था क्या, बस वो साइन वाला देखते हैं, माइनस पाई माइनस थीटा के लिए हाँ इंस्टेड ऑफ दैट इज हमेशा द याद ओनली रखना, हमेशा याद रखना, यू विल हैव टू सी दिस, ऑलवेज सी दिस, नेवर द लेफ्ट वाला, है ना। अंदर में बाकी सारे में प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि लेफ्ट वाला और राइट वाला सेम थे, है ना, इसलिए इतना फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हमेशा वी ऑलवेज सी द राइट वाला, ठीक है, समझ में आया कैसे याद रखना होता है, ठीक है, समझ में आ गया ना। अरे चंपा बता रहे वाचे, आया ना, अच्छा। अब क्या करेंगे हम लोग, मस्त, लास्ट फॉर्मूला ऑफ द डे, 2 tan इनवर्स x से हम लोग जाएंगे cos इनवर्स पे, ठीक है। अब मेरे को बता दे 2 tan इनवर्स को cos इनवर्स में क्या लिखते हैं, 1 माइनस, x स्क्वायर 1 प्लस x हाँ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। अगेन मेरे को बता दे क्या हो जाएगा, जाएगा ये जब -1 to 1 बिलोंग करेगा सही। नहीं यहाँ पे ये चीज नहीं होता, ये दिस इज द पॉइंट वेयर माय फार्मूला ब्रेक्स, ठीक है, एंड आई हैव ट्राइड मेनी अ डेज कि ये फार्मूला क्यों ब्रेक हो रहा है, ये फार्मूला क्यों ब्रेक हो रहा है, आई हैव गॉट अ वेरी कोजेंट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, दिस एक्सप्लेनेशन आई डू नॉट नो वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, बट दिस इज हाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू माई सेल्फ, ठीक है। एक चीज देख, बाकी जहां पे भी तुम लोगों ने इस फॉर्मूला को यूज किया है कि नहीं, ओ भाई यहाँ पे हगाऊं भाई, साइन इनवर्स कौन लिखेगा, साइन इनवर्स होगा ना, मैंने तो लिखा तूने लिखा और बताया भी नहीं, है ना, साइन इनवर्स, ठीक है, ठीक है। अभी एक चीज बता मेरे को, हम लोगों ने जो भी चीज यूज किया, हम लोगों ने जो भी चीज लिखा, राइट, उसमें साइन इनवर्स से साइन इनवर्स जा रहा था, यस है ना, विच मीन्स दोनों का रेंज सेम था कि नहीं, साइन इनवर्स और साइन इनवर्स दोनों का रेंज सेम है कि नहीं, हाँ साइन इनवर्स रेंज इज सेम, tan इनवर्स रेंज इज सेम, tan इनवर्स रेंज इज सेम, cos इनवर्स रेंज इज सेम, cos इनवर्स रेंज इज सेम,
tan inverse sin inverse range is same or not? kind of same. Kind of same, but क्रिटिक एंड पॉइंट्स पे सेम नहीं होता है बाकी. बट यहाँ पे तेरा रेंज सेम हुआ क्या? हाँ. नहीं हुआ ना. अच्छा tan cos नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ ना. तो बस ये वाला चीज तेरे को याद रखना है कि इन दोनों का रेंज सेम कब होता है. इन दोनों का रेंज सेम होता है जब x इज मोर देन 0, मोर देन इक्वल्स टू 0. सोच ले, व्हेन x इज मोर देन 0, tan इनवर्स x विल लाई फ्रॉम 0 to π/2 की नहीं है ना. एंड दैट लाइज विद इन द रेंज ऑफ cos इनवर्स. सो x will be what? Between, sorry, so you should write x is more than equals to 0. और बस ये चीज तेरे को याद रखना है, माइनस cos इनवर्स 1 minus x square by 1 plus x square हो जाता है when x is less than equals to 0. ये बस एक फॉर्मूला है जो याद रखना है. ठीक है ना. ऑब्वियसली इसका डेरिवेशन है, डेरिवेशन, बट तू एग्जाम के हॉल पे तो डेरिवेशन नहीं करेगी ना, यू विल बी जस्ट एम्प्लॉइंग इट इनटू द फॉर्मूलास, राइट. So this is the only formula which will give you trouble, क्योंकि ये वाला मेरे मेथड से हो नहीं सकता है. हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है क्या? नहीं. समझ में आया? Obviously my method was something I had made when I was in class 11 or 12. ठीक है, I wasn't very smart back then, but I just devised something जिससे मेरे को अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाए, कि मेरे को रेंजेस याद नहीं रखने पड़े. ठीक है. एंड आई गेस कि अगर एक फॉर्मूला उसके अंदर नहीं घुसता है देन इट्स ओके. एक फॉर्मूला तो मैं याद रख सकता हूँ, है ना. एंड आई हैव गिवन यू द एक्सप्लेनेशन आल्सो कि व्हाई माय प्रोसेस डज नॉट वर्क, बिकॉज़ tan इनवर्स और cos इनवर्स आर नॉट ऑफ द सेम रेंज. यस सर. बाकी हर एक में अपार्ट फ्रॉम एंड पॉइंट्स माय रेंज इज बिकमिंग सेम, इसीलिए माय मेथड इज वर्किंग. यस सर. समझ में आया? इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करेगी, सारा फॉर्मूला तेरे को याद हो जाएगा. ये सब करने का भी जरूरत नहीं. समझ में आया? ठीक है. अच्छा, वी हैव 50 मिनट्स. 50 मिनट्स के अंदर शुड लाइक 50 मिनट्स के अंदर क्या मैं तेरे को पढ़ा सकता हूँ ये चीज? कर पढ़ाऊंगा तो कितना टाइम लगेगा? अच्छा ठीक है, लेट अस डू इट. व्हाट द हेक. ठीक है. सो लेट अस लर्न अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. ये हमेशा कभी ना कभी तेरे को तेरे वहां पे जो एग्जाम होते हैं, तू कहाँ पे रहती है? दिल्ली में रहती है, राइट? वहां पे कौन सा, यहाँ पे जैसे कर्नाटका सीटी होता है, दैट इज स्टेट लेवल जो एग्जाम होता है, वहां पे कौन सा एग्जाम होता है? होता ऐसा कुछ क्या? कुछ स्पेशल एग्जाम नहीं होता. ये कुछ स्टेट का एग्जाम होना चाहिए ना. NTSC, but that's national, it's not. गधी, NTSC is for class 10, है ना. अरे फॉर स्टेट लेवल कॉलेजेस भी, स्टेट लेवल पे भी अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं ना. वो कौन से एग्जाम के थ्रू होता है? जैसे हम लोग का वेस्ट बंगाल जेई होता था या उड़ीसा जेई होता था, वैसे कुछ जेई एग्जाम होता है तुम लोगों का स्टेट वाइज? नहीं होता. होता होगा, पूछ लेना किसी को. ठीक है. अच्छा, ये बहुत सिंपल सा चीज हम लोग स्टडी करेंगे आज. ठीक है. लेट मी सी व्हिच काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस दे आर. ठीक है. तो तू ऑब्वियसली देखी हो कि इस टाइप का समेशन वाला क्वेश्चंस बहुत सारा आता है, राइट? है ना. एंड इसका आंसर पूछता है, राइट? सो वी विल बी डूइंग these kinds of questions today. ठीक है. आई हैव अ लिस्ट ऑफ लाइक 10 क्वेश्चंस. ठीक है. वो 10 क्वेश्चंस मैं तेरे को अभी बता रहा हूँ. ठीक है, कैसे करते हैं. ठीक है. एंड देन मैं तेरे को बताऊंगा कि मेरे जेई एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया था. ठीक है. अभी देख, इसको करने का एक बहुत सिंपल तरीका है. whenever you see a summation and summation के बाद you see a tan inverse or a cot inverse, right? ठीक है. whenever you see a tan inverse or a cot inverse after a summation mark, always convert that tan inverse or cot inverse into tan inverse. Always convert it into tan inverse. तो जो तू tan inverse में convert करेगी, this now becomes r equals to 1 to infinity tan inverse 1 by r square plus 5r plus 7. है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ. है ना. But when does that happen? That only happens when
this quantity is more than 0. हाँ है ना? अब खुद सोच ले, R में 1 2 3 4 डालेगी तो more than 0 होगा कि नहीं? रूट्स निकाल लेंगे। अरे रूट्स नहीं निकालना है, बस मेरे को बता more than 0 होगा कि नहीं when R is 1 2 3 4. हाँ पॉजिटिव वैल्यूज के लिए होगा। होगा ना, तो रूट्स क्यों निकालना है? डायरेक्टली tan इनवर्स ये लिख सकती है ना, है ना? क्योंकि cot इनवर्स x is not always tan inverse 1 by x, है कि नहीं? It happens only when x is more than 0. पता है ना? है ना? पता है तो ठीक है. So we discussed that this should be indeed more than 0. The argument should be more than 0. So yeah, argument, since it is more than 0, we have this quantity is more than 0. So obviously we can do it, right? Next, बहुत simple है. Whenever you have a tan inverse term, right? Whenever you have a tan inverse term, we'll try to bring it down to tan inverse plus tan inverse. अच्छा ठीक है ना? कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर रहे हैं? tan inverse x plus tan inverse y equals to, sorry, tan inverse x plus नहीं करना है, माइनस करना है. सॉरी माय बैड, इट शुड बी माइनस. ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं? tan inverse x minus tan inverse y, tan inverse x minus y by 1 plus xy. ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं. ठीक है, अभी देख, इसको करने का बहुत सिंपल एक तरीका है. इसको करने का एक बहुत सिंपल तरीका है, तुम लोग को याद रखना होगा. मैं तुम लोग को सारे क्राइटेरियंस बता दे रहा हूँ. tan इनवर्स x minus y by 1 plus xy, that you are writing as tan inverse x minus tan inverse y, right? है ना? है कि नहीं? तो तेरे को एक तो यहाँ पे somehow you need to have a 1, है ना? तो बहुत सारा ट्रिक एग्जिस्ट करता है कैसे 1 लाया जाए. ठीक है, मैं तेरे को 2 ट्रिक बताता हूँ, थर्ड वाला तू मेरे को बताना. ठीक है, सबसे पहले ये जो डिनोमिनेटर तेरे को दिख रहा है ना, इसको अगर तू 7 से डिवाइड कर देगी, दैट इज यू डिवाइड द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय 7, ये 7 का 1 हो जाएगा. बट इजियर होगा if you write 7 as 6 plus 1. Yeah, that's the first method. First method is you divide the entire thing, or second method is you can just write 7 as 6 plus 1. Okay? Yeah. है ना? And now it becomes easy. How does it become easy? You can now write sigma r equals to 1 from infinity, r to infinity, tan inverse, you can write 1 by r square plus 5r plus 6 plus 1. है ना? And यहाँ पे तेरे को ये plus 1 मिल गया. All you need to do is now factorize this. Factorize कर दे. Factorize तो करना आता है, चैंपियन है तू. कितना हो जाएगा? r minus 2 r minus 3 plus 1. r plus 3 into r plus 2 plus 1. है ना? So you have got these two also, x and y also. x and y also you have got. बस ऊपर में फिर x minus y कर दे, क्या हो जाएगा? r plus 3. Oh no, you need to write plus 2 plus 3. Yeah. Wow. Reduce. Wow. हुआ? Yep. हुआ कि नहीं? minus So r. this you can write sigma r from 1 to infinity tan inverse r plus 3 minus tan inverse r plus 2. लिख सकते हैं कि नहीं? वाह, लिख सकते हैं कि नहीं? है ना? है ना? और तू जाके थोड़ा सा देख लेना tan इनवर्स x minus tan इनवर्स y का क्राइटेरियन क्या है, कि we can write it as ये वाला जो है, this equality we can put only when xy is greater than -1. जाके देख लेना. ठीक है, अब खुद मेरे को सोच के बता, shouldn't this into this be more than -1? r is from 1 to infinity, तो कुछ भी डाल, the multiplication of them has to be more than -1 ना, है ना? No one checks this in the books, which makes me go mad. ठीक है, but always you should check कि you are using this condition, है ना, which means this condition should also be satisfied, है ना?
ठीक है, भूल जाए इसको। सो obviously xy more than 1 minus 1 लिख देता हूँ, नहीं तो it will eat me up। ठीक है, and now just put in the values। कितना हो जाएगा, tan inverse r में 1 पुट कर दे, कितना हो गया 4 minus tan inverse 3 plus tan inverse 5 minus tan inverse 4। ऐसे चलता रहेगा, चलता रहेगा ना। लास्ट वाला क्या हो जाएगा, tan inverse something minus tan inverse infinity, एक्चुअली infinity plus 1 minus infinity। ठीक है, बट ऑब्वियसली तू थोड़ा सा ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन देखेगी तो पहला दूसरा कट गया। सिमिलरली नेक्स्ट वाला टर्म अगर लिखती प्लस tan इनवर्स 6 माइनस tan इनवर्स 5, अगेन ये और ये भी कैंसिल हो जाते हैं। नेक्स्ट ये और ये भी कैंसिल हो जाता है। सिमिलरली ये भी कैंसिल हो जाता, सॉरी ये नहीं, ये वाला भी कैंसिल हो जाता कि नहीं? By that sequencing order that should be cancelled. So technically you are now left with infinity plus 1, that will be same as infinity, so you can write pi by 2 minus tan inverse 3, है ना? And a more correct interpretation would be you should write a tilde। ठीक है, write a tilde, or you should write approximately equals to। Why are you writing approximately equals to? क्योंकि tan inverse anything will never give you pi by 2, it will give you something close to pi by 2, है ना, है ना, है कि नहीं? That is how it has been defined। So pi by 2 minus tan inverse something is same as cot inverse something ना, तो इसका आंसर क्या हो गया, cot inverse 3। समझ में आया? ठीक है, we'll be doing like 3 more questions जिसमें मैं तेरे को सारे जितने भी इस क्वेश्चन के डिफरेंट हो सकते हैं ब्रांचेस में तेरे को दिखा दूंगा। Have you written this down? Yes. Okay, so we'll just move on। इसी टाइप का क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा हायर लेवल। ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। Okay, let us see an easier question। easier question would be easier question, yeah। So this now came नहीं, ये थोड़ा सा अभी के लिए डिफिकल्ट। हाँ, you tell me the value of sigma r is from 1 to infinity tan inverse 2 by r plus 2 whole square। ठीक है, and since I'll be putting this on YouTube, right, so let me just talk through it। ठीक है, so यहाँ देख ले। ठीक है, obviously you'll be able to do this। then कैसे करते हैं, डरना नहीं है। अगेन सी द पैटर्न सेम है, सिग्मा है, tan इनवर्स है कि नहीं, ऑलरेडी tan इनवर्स में दिया हुआ है। सो व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू, x माइनस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई के फॉर्म में लिखना है आपको, सॉरी 1 प्लस एक्स वाई के फॉर्म में लिखना है ना। तो कहां से वो 1 कहां से जनरेट होगा, इसको एक्सपैंड कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा r इज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी tan इनवर्स 2 बाई r स्क्वायर प्लस 4r प्लस 4। ये सुनो एंड इस वाले 4 को याद है ना क्या किए थे, 3 प्लस 1 लिख देंगे। तो r फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी tan इनवर्स 2 r स्क्वायर प्लस 4r प्लस 3 प्लस 1 होएगा। अरे होएगा ना, यस फैक्टर से बन रहा है। ठीक है, अब एक चीज मेरे को बताओ, इसका फैक्टराइजेशन करना आता है? tan इनवर्स क्या हो जाएगा, 2 बाई r प्लस 3 इंटू r प्लस 1 प्लस 1 होएगा ना। एंड बस हो गया, इतना हो गया तो फिर गेम खत्म है। r प्लस 3 माइनस r प्लस 1 बाई 1 प्लस r प्लस 3 इंटू r प्लस 1। तो कितना हो जाएगा, r फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी tan इनवर्स r प्लस 3 माइनस tan इनवर्स r प्लस 1 होएगा ना। अच्छा, यहाँ पे एक तो ब्रैकेट डालना, ठीक है, अदरवाइज इट डजंट मेक सेंस। ठीक है, हो रहा है। Now put the values and now just put the values, you put in 1। अब फिर से खुद से सोच ले, x into y is more than equals to minus 1 ना, इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन कर पा रहे हैं। ठीक है, नहीं तो पाई प्लस पाई माइनस लग जाता।
ठीक है, अभी एक चीज बता मेरे को। सो पहला वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 2। नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3 होएगा ना, प्लस tan इनवर्स 6 माइनस tan इनवर्स 4 प्लस tan इनवर्स 7 माइनस tan इनवर्स 5। ऐसे से करके जाएगा, करता जाएगा ना, इंफिनिटी प्लस है ना। अब मेरे को बता किस पैटर्न में कट रहा है, ये और ये कटा, ये और ये कटा, ये और ये, ऐसे ऐसे करके सब कट जाएंगे, हाँ है ना, कटेंगे कि नहीं। tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स 2 बचेगा, है ना, लास्ट वाला कौन सा बचेगा, माइनस इंफिनिटी tan इनवर्स इंफिनिटी tan इनवर्स प्लस इंफिनिटी, tan इनवर्स क्या बचेगा, इंफिनिटी। है ना। थोड़ा सा सोच, tan इनवर्स इंफिनिटी बचेगा कि क्या बचना चाहिए, इंफिनिटी प्लस 3 वाला टर्म बचेगा। इंफिनिटी प्लस 3 वाला टर्म बचेगा, हाँ वेरी गुड। दो तो tan इनवर्स इंफिनिटी बचेंगे, बचेंगे कि नहीं, खुद सोच। अच्छा इन्फिनिटी भूल जा, इन्फिनिटी भूल जा, इसको क्या करना है, इन्फिनिटी इज अ वेरी लार्ज नंबर, ठीक है, तो इसको कर दे टिल 500, ठीक है ना। तो लास्ट tan इनवर्स 503 माइनस tan इनवर्स 501 बचेगा, उसका पहला वाला टर्म क्या होगा, tan इनवर्स 502 माइनस tan इनवर्स 500, ऐसे बचेगा, बचेगा कि नहीं। अब खुद सोच, खुद सोच, ये और ये तो कट जाएंगे लेकिन ये दोनों नहीं कटेंगे, कट रहे हैं क्या किसी से भी, नहीं कट रहा है। तो सिमिलरली 500 की जगह अगर इंफिनिटी होता, दो दो तो tan इनवर्स इंफिनिटी बच जाते, बचते कि नहीं। तो इसका आंसर क्या होता, 2 tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 3, है कि नहीं, है कि नहीं, इक्वल्स टू 2 times this would be pi minus tan inverse 2 minus tan inverse 3, 2 times tan inverse। हाँ है ना, याद है, yes है ना। अब मेरे को बता, दिस इज सेम एज पाई माइनस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। yeah tan inverse 1 ओ हेलो, tan इनवर्स 1 बोला तो था, tan इनवर्स 1 बोला था चंपा। 1 plus tan inverse 2 plus tan inverse 3 is equal to 5। tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इक्वल्स टू क्या होता है, पाई। tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 कितना होता है, पाई माइनस tan इनवर्स 1, है ना। एंड यहाँ पे भी एक पाई है I'm ना। telling you यू आर टेलिंग द सेम थिंग क्या, yeah I'm ओके। telling तो कितना हो गया, पाई माइनस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाई 4। तो आंसर कितना हो गया, पाई बाई 4, हुआ कि नहीं। I was telling you the actual answer at the end। और यू टेलिंग द एक्चुअल आंसर क्या, ठीक है, समझ में आया सबको, सबको क्या, एक ही तो बंदर बैठी है, ठीक है, पहले तो याद हुआ, समझ में आया कैसे किया मैंने, yep बूम बाम क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेना इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और दो दो तो करा देता हूँ, उसके बाद विल बी फ्री टू गो, ठीक है। और दो ठो करा देता हूँ, कौन सा वाला कर रहा हूँ, कौन सा वाला कर रहा हूँ, कौन सा वाला इजी है तेरे लिए, नहीं तो तू तो फट जाएगा तेरा तो, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीजर टाइप, if fx equals to tan inverse x minus 2 on x square plus 2x minus 2x plus 2, find the value of 26 f dash 1। स्केरी, है ना, बट डरना नहीं है, डरना नहीं है। अगेन देख, सेम टाइप का इम्प्लीकेशन आ रहा है, tan इनवर्स समथिंग दिया है ना, उसको फिर से ब्रेक डाउन कर देंगे। कैसे ब्रेक डाउन करेंगे ना सर, ये हो जाएगा tan इनवर्स, अच्छा x minus 2 by x square plus 2x
प्लस 1 प्लस 2, सॉरी प्लस 2 नहीं, प्लस 1, है ना? एंड दिस इंडीड शुड बी x प्लस 1 होल स्क्वायर। लेकिन x प्लस 1 होल स्क्वायर होने से x माइनस 2 कैसे लाएंगे ऊपर में? x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 हो जाएगा ना। तो कुछ हो रहा है क्या? नहीं, डिवाइड नहीं हो रहा है ना। तो मैंने क्या बताया था, अगर दो टाइप का टेक्निक होता है, अगर प्लस 1 से सेग्रीगेट नहीं कर पा रही है तो दूसरा वाला टेक्निक कौन सा यूज करना है? डिवाइड। डिवाइड। तो किससे डिवाइड कर देगी? थ्रू आउट 2 से। तो क्या हो जाएगा? x बाई 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाई 2 प्लस 1 हो जाएगा इतना। कुछ नहीं किया, डिवाइड कर दिया हूं 2 से, तो x माइनस 2 को डिवाइड कर दूंगा 2 से, तो x बाई 2 माइनस 1 हो जाएगा, है ना? और एक्स स्क्वायर प्लस 2 x को डिवाइड कर दिया 2 से, और 2 को डिवाइड कर दिया 2 से, तो 1 बच गया, है कि नहीं? कुछ भी फैंसी नहीं किया हूं। अब लिख सकते हैं tan इनवर्स x बाई 2 माइनस 1 बाई x इंटू एक्स प्लस 2 बाई 2। लिख सकते हैं? लिख सकता है। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ओ व्हाट ए। Yes. अब देखो हो गया tan इनवर्स, दिस इज योर a एंड दिस इज योर b, है कि नहीं? क्या कर देंगे? a माइनस b बाई 1 प्लस a इंटू b। एंड अब खुद देख ले, ये और ये मैच कर रहा है? बढ़िया। मैच किया ना? तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x प्लस 2 बाई 2। अच्छा, अब मेरे को एक चीज पता, क्या ये हमेशा दिस इक्वल्स टू दिस होगा? नहीं होना चाहिए ना। कब होना चाहिए? when this into this should be more than -1 होना चाहिए था कि नहीं? कंडीशन दिया है क्या? नहीं दिया है। बट ठीक से सोच, x में जब 1 पुट कर रही है तब वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है? both of them are positive, positive into positive will definitely be more than 1, है ना? इसीलिए जब भी कोई टीचर इसको पढ़ाता है ना, दे ऑलवेज से कि जब यू आर सॉल्विंग इक्वेशंस, राइट, फॉरगेट अबाउट द डोमेन एंड द रेंज। दैट्स नॉट द राइट थिंग टू डू। यू शुड ऑलवेज चेक, but somehow these questions are designed so that everything falls within the precise domain and range। ठीक है? ठीक है, तो अब मेरे को बता दे, अब fx इक्वल्स टू इतना हो गया, है ना? इतना हो गया कि नहीं? अरे चचा इतना हुआ ना। तो f डैश x कितना हो जाएगा? tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर x बाई 2 का डेरिवेटिव मतलब हाफ, है ना? अब मेरे को बता दे tan इनवर्स 1 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1 घुस गया, यहाँ पे 1 घुस गया, हाफ माइनस, है ना? कर दे, देख तेरा आंसर आना चाहिए 9/26 आना चाहिए। तो अब 26 टाइम्स दिस नंबर कितना हो जाएगा? 9, है ना? So sorry, this I should write it. F dash 1 will become equals to this. So 26 times f dash 1 will become equals to 9. वाह, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ना? Everything is sitting in the domain and the range. Yes or no? ओके, ठीक है, समझ में आ गया? बढ़िया। ठीक है, और एक क्वेश्चन करने का हिम्मत है? कर लेता। वाह, तो पूरा फॉर्म में। नेक्स्ट अभी कर लेते हैं, ये जेई मेंस का क्वेश्चन है। दिस इज द क्वेश्चन दैट आई एनकाउंटर्ड इन 2003, तो 2013, सॉरी नॉट 3, 2003 में तो मैं बॉन्ड भी नहीं हुआ था, जस्ट किडिंग। ठीक है, अब देख, क्वेश्चन इज कॉट इनवर्स सिग्मा। देख डराने के लिए कितना बड़ा क्वेश्चन दिया है। कॉट इनवर्स 1 प्लस सिग्मा k इक्वल्स टू 1 to n 2k। ओ भाई, क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है ना? ऑब्वियसली जेई मेंस के लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है।
ठीक है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट एक चीज तुम लोग को समझना है ये वाला देख के कि दिस इज द सेम फिलोसॉफी, कुछ डिफरेंट नहीं कर रहे हम लोग, कर रहे हैं क्या? नहीं, नहीं, बस अब एक नया वाला ये वाला साइन आ गया, तो कुछ नहीं, इवेलुएट कर देते हैं। ठीक है, दिस थिंग लेट अस इवेलुएट। 1 प्लस ये 2 जो है, हमेशा याद रखना, अगर सिग्मा साइन होता है तो ऑल द कांस्टेंट्स गेट आउटसाइड। 2 टाइम्स सिग्मा k फ्रॉम 1 to n, है ना, दैट इज सेम एज 1 प्लस 2 बाई k में डाल दे, 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 प्लस n। क्या क्वेश्चन है ये, व्हाट ए, ठीक है ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? सम ऑफ n टर्म्स, n into n plus 1 by 2, है ना। 2 कट गया, आंसर कितना हुआ, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। ये क्या क्वेश्चन है सर, ये क्या मजाक चल रहा है क्या? आइसक्रीम बेचने आए हैं क्या यहाँ पे? ठीक है, तो सॉल्व कर ले अभी। कॉट इनवर्स सिग्मा कॉट इनवर्स n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 फ्रॉम 1 to 23। अब खुद सच सोच के बता मेरे को, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 will be positive when you put these numbers, yes or no, in the entire range। तो tan इनवर्स कर सकते हैं सर, डरने का जरूरत ही नहीं है। डर तो मैं ऐसे भी नहीं रही थी, है ना, बस फट रहा था थोड़ा सा। ठीक है, बस इतना वाचे, ये तो हो गया सर। ये क्या था, इसको डायरेक्ट कर सकते हैं सर, tan इनवर्स। ये क्या है सर, ये क्या मतलब, क्या मजाक चल रहा है? हम लोग को आप क्या क्या समझ के रखे हो? तो 2 मिनट भी नहीं लगेगा सर सॉल्व करने के लिए, हो गया। तो क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स सिग्मा tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n की नहीं, फ्रॉम 1 to 23, 1 to 23 की नहीं। चचा बोलो जी, बोलो चचा, सेम आएगा ना? वैल्यूज डाल दो, है ना। अब क्या करेंगे, इसको जस्ट मैं एक दूसरे पेज पे लेके जा रहा हूँ। ठीक है, क्या आया था हमारा, कॉट ऑफ सिग्मा n फ्रॉम 1 to 23 tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n, इतना आया था ना। हमेशा याद रखना कि यहाँ पे ब्रैकेट देना बहुत मैंडेटरी होता है। बाहर कॉट इनवर्स है, कॉट इनवर्स है क्या? हाँ ठीक है, सॉरी, कॉट इनवर्स। ठीक है, हो गया इतना, बात ए। ठीक है, अच्छा रुको रुको, ये क्वेश्चन मैंने तो गलत दिया, कॉट इनवर्स नहीं है, यहाँ पे कॉट होगा। ठीक है, ठीक है ना, कॉट इनवर्स ऑफ एंगल की थोड़ी इट डजंट मेक सेंस, है ना, बिकॉज दिस विल गिव यू एन एंगल ना, ये तो एंगल दे रहा है ना तेरे को, tan इनवर्स विल गिव यू एन एंगल, एंगल का फिर कॉट इनवर्स डजंट मेक सेंस। ठीक है, इन मैथमेटिक्स यू कैन डू इट बट इट डजंट मेक सेंस इन द फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, सो इट विल बिकम कॉट ऑफ, वैल्यू पुट कर दे, n में सबसे पहला वैल्यू क्या जाएगा, 2 माइनस 1, 3 माइनस 2, लास्ट वाला क्या होगा, 24 माइनस 23। अब देख ले पैटर्न क्या, ये कटा, ये कटा, तो ये वाला भी कट जाएगा, कटेगा कि नहीं? तो कितना हो गया, कॉट ऑफ tan इनवर्स 24 माइनस tan इनवर्स 1, है ना। लेकिन tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का मैं तेरे को बोला है फॉर्मूला याद नहीं रखना है, रखना है क्या, नहीं रखना है, तो क्या कर देगी, उस 1 माइनस साइन को अंदर ले जा, कितना हो गया, tan इनवर्स माइनस 1 हो गया, है ना। और tan इनवर्स a प्लस b when xy becomes less than 1, less than 1 हो गया, नेगेटिव हो गया ना। पाई ऐड कर देंगे, पाई ऐड नहीं करना है मैडम, पाई ऐड नहीं करना है, भूल गई क्या? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y by 1 minus xy when xy is less than 1, है ना, and x and y can be anything, है कि नहीं। तो कितना हो गया, tan इनवर्स a plus b that is 23 by 1 minus ab that becomes 25, yes or no, है ना। This is a positive number, so I can write cot inverse 25 by 23, yes or no,
Yes or no, 25 sir? हो जाएगा ना? Yes. So it will become how much? 25 on 23. आंसर हो गया? Yeah. ये वाला क्वेश्चन करने से तेरे को मिलता 4 मार्क्स, एकदम खुश हो जाती। तो उसके बाद तेरा NIT राउरकेला से ट्रांसफॉर्म होकर NIT वारंगल हो जाता, 4 मार्क्स मिल जाते तेरे को। Oh, nice. वाह, वॉच है। ठीक है, डर लग रहा है क्या? 30 क्वेश्चन भाई, दिस इज TWTI। ठीक है, बढ़िया। क्या है? कुछ नहीं है ये क्वेश्चन, सिंपल है, बढ़िया। सर वॉच है, सर पॉश पॉश वर्ड्स बताऊंगी, सर खुश हो जाएंगे। क्या वॉच है? ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। हिम्मत है? Water. हिम्मत है कि नहीं है? Yes. Bring it on. हिम्मत है ना? है ना चचा? Bring हिम्मत, it on. ओके, ब्रिंग इट ऑन। वाओ, वॉच ए। ठीक है, अभी करते हैं मस्त वाला सम। सिग्मा 2 cot इनवर्स n square plus n plus 4 divided by 2 equals to k pi. Find the value of k. Find the value of k. So n is lying from 0 to infinity. Yes or no? Yes. Yes or no, sir? Yes. होएगा ना? कर दे, फिर सॉल्व कर दे, दिखा दे तेरे में कितना हिम्मत है। सिंपल, टेंशन नहीं लेना है। पहले देख ले, ये वाला क्वांटिटी मोर देन 0 हो रहा है क्या फॉर द गिवन रेंज? हो रहा है ना? अगर हो रहा है तो tan इनवर्स लिख सकती है। अगर tan इनवर्स लिख देगी तो 2/n² + n + 4 हो जाएगा। अभी वो तू सोच, उसको 3 + 1 करना है या डिवाइडेड बाय 4 करना है? देखते हैं। ठीक है, अगर 3 + 1 करेगी तो तेरे को बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसको फैक्टराइज ही नहीं होगा। वो फैक्टराइज होगा बट विथ irrational constants and maybe imaginary numbers, है ना? maybe imaginary, हाँ imaginary आ जाएगा। n² + n divide by 4। तो क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना 4 से। भाई डरना तो है ही नहीं भाई, डरते तो हम लोग किसी से नहीं है। So अगर you are dividing by 4 throughout, so it will become half, and this will become n² + n by 4 and plus 1, and that is equals to what? k pi। अभी यहाँ पे दिमाग लगाना है कि कैसे ब्रेक करे ताकि हाफ मिले। अच्छा, I'll just come in a while, okay? n by half plus 1 by half और n और n का तो मिलना नहीं। Yeah, were you able to solve it? Doing कर रही हूँ। अरे डरना है नहीं सर, यहाँ हाफ बैठा देंगे, यहाँ पे n × n + 1 है, by 4 है ना? ये तू 2 ले ले, तू 2 ले ले, शांत है कि नहीं? चच्चा हो रहा है ना? जैसे ये हाफ दिखा, अरे वॉच ए, ये तो सिंपल हो गया सर, ये तो हम लोग बचपन में से किया करते थे। I see। ICU में पहुंच जाएगी ये सब क्वेश्चन करने के बाद, का ट्रिक नहीं पता हुआ तो। कितना हो जाएगा tan इनवर्स n by 2? ओह, हो रहा है कि नहीं? हो रहा है कि Yeah। है ना? हाँ बेटा, 2 पूरे से ही मल्टीप्लाई करूंगा, है ना? थोड़ी आधे से मल्टीप्लाई करूंगा, है ना? है ना चच्चा? हुआ कि नहीं? अभी क्या करेंगे? ओ भाई, इतनी बड़ी गलती हर जगह दैट इम्प्लाइज है।
हर जगह ठीक वो है, दैट एम्प्लॉय साइन लगेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा ये वाला, अभी थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ज्यादा तो तेरे पास है नहीं, है ना। तो करोगे तो पहला वाला टर्म क्या बचेगा, 2 को बाहर ले जाते हैं, इस 2 को लेट अस थ्रो इट आउटसाइड, 2 को बाहर लेगा, है ना। 0 पहले डालता है तो tan इनवर्स हाफ माइनस tan इनवर्स 0। नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3/2 माइनस tan इनवर्स हाफ, करते जाओगे, पहला वाला दूसरा वाला फिर 1 सब कुछ होगा। पटास हो गया, लास्ट में tan इनवर्स इंफिनिटी बच जाएगा, बचेगा कि नहीं। बच तो जाएगा। tan इनवर्स इंफिनिटी कितना होता है, π/2 माइनस 0 मतलब π/2, 2 टाइम्स π/2 मतलब पाई, पाई इक्वल्स टू k पाई। व्हाट ए आंसर इज k इक्वल्स टू व्हाट। पाई सर ये तो बचपन में किया करता था सर, ये क्या है सर, ये क्या मजाक चल रहा है क्या हमारे साथ। व्हाट इज मास डन। मसना, यस है ना। हो सकता है 10 बजे 3-4 और बेवकूफ लोग ज्वाइन करें, ठीक है, ओके क्योंकि मेरे ही आईडी से और एक क्लास चलने वाला है, ठीक है। लेट अस नाउ मूव ऑन, करेंगे अभी थोड़ा सा मध्यम डिफिकल्ट क्वेश्चंस। मध्यम मतलब मीडियम मीडियम, ओके, रेयर सिजलिंग। रेयर। टेंशन नहीं लेना है भाई। सिग्मा m इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी, व्हाट ए, क्या हो गया, tan इनवर्स ये 2m एक्सेंट पे जाने by वाला है। m 4 plus m square plus 2. I want to get rid of this accent, but it seems that I can't. To get used to it. Okay. And now tell me, क्या हो जाएगा। सर ये तो बहुत इजी है सर, बाय 2 करने का मन कर रहा है सर, बाय 2 कर दे क्या। तो हमेशा हायरार्की याद रखना, बाय 2 पहले नहीं करते हैं, पहले फैक्टराइज करने की कोशिश, उसके बाद बाय 2, फैक्टराइज नहीं हुआ तो बाय 2, ठीक है। तो पहले करेंगे फैक्टराइज करने की कोशिश। फैक्टराइज कैसे किया जाएगा इसको, I sir why we can write it as m4 plus m square plus 1 plus 1 घंटा। सर हमसे ये फैक्टराइज होने वाला है, घंटा, है ना। सर जिंदगी में हमसे ये फैक्टराइज होगा नहीं, क्योंकि हम मंद बुद्धि हैं। थैंक यू। तो ये फैक्टराइज होता है, ठीक है, इसमें डरने का कोई बात नहीं है, ठीक है। इसको कैसे फैक्टराइज करते हैं, देखो m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर करोगे कि क्या क्या मिलेगा तुम्हें, m4 मिलेगा प्लस 1 मिलेगा प्लस 2m स्क्वायर मिलेगा कि नहीं, 2m स्क्वायर मिलेगा ना। तो उसमें से एक तो m स्क्वायर हटा देना, एक, बस इतना सा तो बात है ना। अब मेरे को एक तो चीज बता, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो इट विल बिकम a प्लस b इंटू a माइनस b, है ना। अच्छा ठीक है, ठीक है, प्लस 1 है कि नहीं, है ना। अब फैक्टराइज हो गया तो इसमें डाल के देख ले सर, m इक्वल्स टू 1 से इंफिनिटी है, tan इनवर्स क्या हो जाएगा सर, ये वाला है वो वाला है सर, माइनस कर देंगे सर, क्योंकि माइनस करने में तो सर हम लोगों को महारत हासिल है ना। एग्जाम में भी मैडम मार्क्स काट रही है, हर जगह मैडम मार्क्स काट रही है, सब कुछ सब लोग काट रहा है, जिंदगी में भी बॉयफ्रेंड काट के चला गया, ठीक सर, माइनस तो कर लेंगे, हो गया। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा m इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी tan इनवर्स m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 माइनस tan इनवर्स व्हाट, m स्क्वायर माइनस m प्लस 1, ये सुनो आएगा ना, आया मोडेम जी आएगा ना। हाँ आ गया। अब मेरे को चीज बताओ, दोनों पॉजिटिव है कि नहीं, यस फॉर द, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो एक्स वाई मोर देन -1 है, अगर मोर देन -1 है तो tan इनवर्स x माइनस वाई बाई एक्स वाई लगा सकते थे, so this transformation is actually now correct, ठीक है। so now you can write here पहला वाला m में 1 डालो, 1 डालोगे तो कितना होता है 1 2 3, tan में 1 डालो, 1 1 कट गया, tan इनवर्स 1, tan में 2 डालो तो tan इनवर्स कितना होना चाहिए 2 मतलब 4 5 6 सॉरी 2 5 6 7 माइनस tan इनवर्स कितना हो जाएगा 2 डाल रहे हो मतलब 4 माइनस 2 2 3, है कि नहीं। तो ऐसे करते हुए जाओगे तो दिख रहा है कि ये सब कट जाएगा, लास्ट में tan इनवर्स इंफिनिटी बचेगा।
तो कितना हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स 1 मतलब पाई बाई 4, क्योंकि tan इनवर्स 1 तो सर पाई बाई 4 होता है, ये तो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था। अरे हुआ कि नहीं चंपा, लिख रही इतना क्यों लिख रही है तू, कॉपी पेस्ट कर रही है क्या? 1 plus n square plus n plus 1 n square minus n plus 1. Got it. Got it. What a वैल्यूज डालेंगे 0 से 1 से डाल के एक बार देख, tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 7 माइनस tan इनवर्स 3, ऐसे इसी रेंज में आएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे तेरे को पकड़ना क्या है, यहाँ पे तेरे को पकड़ना है सीक्वेंस। समझ में आया? आया कि नहीं मैडम जी? आया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन करें क्या, हिम्मत है? tan inverse infinity. अरे तेरे माइक से आवाज आ रहा है यार। हेलो, हाँ तेरे माइक में बैकग्राउंड में कुछ आवाज आ रहा है, मतलब कुछ तो डिस्टरबेंस है, स्टैटिक। एक बार ऑफ करके ऑन करना माइक। हेलो, Whenever you are speaking na, the mic picks up some static. oh, ठीक है? Okay, so are you ready for the next question? yes, Okay, so let's just move on. Let's just write. Okay. दिख रहा है? Okay, so let us just write the next question. The next question is, if fx equals to sigma r is from 1 to n tan inverse 1 by x square plus 2r minus 1 times x plus r square plus r minus 1 मेहनत, then बाप रे, limit n tends to infinity f dash 0 mod equals to how much? nice. इतने में आधे लोग ऐसे इस क्वेश्चन को देख के छोड़ के चले जाएंगे कि क्या है ये तो आधा तो मेरे को सिंबल ही समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं? सर व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, आई डोंट नो दी सिंबल्स, लेकिन डरना नहीं है। ठीक है, यहाँ देख, यही वो सारे क्वेश्चन है जहां पे तू बाकी लोगों से ज्यादा नंबर ला सकती है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन तू करके जा रही है, राइट? सिग्मा tan इनवर्स मतलब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y करना है कि नहीं? है ना? अच्छा ये +1 होगा, ठीक है, दिस इज +1 या सौम्या अपना एक बार स्पीकर को, ये क्या बोलते हैं, अपना जो ईयरफोन है निकाल, वापस डाल। Okay, I'll just tell you how to do this, by the way. Okay, so it is sigma r from 1 to n tan inverse 1 on x square plus 2r minus 1 times x plus r square plus r plus 1. ऐसा no? है ना? The same as, yeah. Are you able to hear me? Yeah, Sigma better? r from 1 to n. Yeah, now it's better. Tan inverse, what did you do? निकाल के डाल दिया। फैक्ट्री रीसेट, है ना? Yeah. ठीक है, टेंशन मत ले। एक चीज दिख रहा है तेरे को यहाँ पे, ये 1 दिख रहा है, हाँ, वही 1 तो हमें चाहिए। ठीक है, और एक चीज तेरे को दिखना चाहिए, एक्स स्क्वायर 2rx एंड r स्क्वायर दिख रहा है? So you can couple all of them together. ठीक है, and what is left? Minus x is left, plus r is left, and plus 1 is left, है ना? These are the things which are left, है कि नहीं? So you can now write sigma r is from 1 to n tan inverse. Now you can write x, okay, just wait. You just write now
x प्लस आर होल स्क्वायर माइनस, है ना? अच्छा x प्लस आर होल स्क्वायर हो जा रहा है क्या? x प्लस आर होल स्क्वायर, मैंने यहाँ पे ही क्वेश्चन में गलत लिखा है, सॉरी, माइनस आर होगा, ठीक है? ठीक है, प्लस आर होने से ये वाला क्वेश्चन इतना आसानी से सॉल्व नहीं हो सकता, माइनस आर दिया, ठीक है? ऑब्वियसली देखो दिख रहा होगा क्यों क्यों माइनस आर दिया है, ताकि तेरा, है ना? Now you can write this as sigma r from 1 to n tan inverse 1 by x plus r. You can take common from these two. You take x plus r common, you'll get x plus r common and you'll get what? x plus r. यहाँ पे दो तो x plus r थे, राइट? उसमें से एक x plus r कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? x plus r minus 1 plus 1. बचा कि नहीं? Yes. अरे सर जी, बचा कि नहीं? Plus r whole square. x plus r whole square. नीचे. नीचे x plus r. No. x plus r. अच्छा हाँ नहीं. अरे 1 प्लस ए भी तो हो गया तेरा, अब ए माइनस भी करना है. करना है कि नहीं? तो क्या होना चाहिए? x प्लस आर माइनस x प्लस आर माइनस 1. सब में सेम ही थेरेपी, सब में सेम थेरेपी, कुछ भी डिफरेंट नहीं है. कुछ भी डिफरेंट है क्या? You're doing exactly the same thing, right? है ना? अरे मैडम, हो रहा है ना? Yes. होएगा ना? तो अब मेरे को बता, a minus b by 1 plus ab, this now you can write as what? Tan inverse x plus r plus. Yeah, so you can write it as sigma r from 1 to n R from 1 to n. tan inverse x plus r minus tan inverse x plus r minus 1. मैंने जो अभी लिखा सही है? ब्रैकेट देना पड़ेगा, तो इस जो सिग्मा ऑपरेटर है सिर्फ पहले वाले के साथ नहीं है, पूरे के साथ है. सबके साथ है ना? Yes. Okay. Are you getting it? Yes. Yeah. No worries. So now, okay. Now let's just move on. Let's just see what's happening over here. So now we got sigma r from 1 to n, right? Tan inverse x plus r minus tan inverse x plus r minus 1. है ना? ठीक है तो? Yes. And so just plug in the values. You'll first get tan inverse x plus 1 minus tan inverse x, है ना? Plus tan inverse x plus 2 minus tan inverse x plus 1. Next one you are getting tan inverse x plus 3 minus tan inverse x plus 2, and so on and so forth. So on. Yes. है ना? So you just check and you tell me क्या क्या चीजें कट जाएंगी. This, everything will get cancelled out, and at the end you are left with ये वाला टर्म tan inverse infinity, है ना? प्लस उसके बाद वाला टर्म भी कट जाएगा. कटेगा कि नहीं? प्रीवियस टर्म से कट जाएगा ना? हाँ, और tan inverse just 1 second, let me हेलो धनंजय सर, आवाज आ रही है क्या? हाँ राहुल, आ रही है सर. 3 मिनट और 10 बजे से आप शुरू कर सकते हो, कोई बात नहीं है ना? ये जस्ट लास्ट सम है, वो उसको कंप्लीट करा देना. हाँ, नो प्रॉब्लम. ठीक है. So you got it, right? You are cancelling all of the items and you are now left with only 2 items, right? This one and this one. Boom! ये कैसे हुआ सर? हमने तो इतना सोचा नहीं था, है ना? अरे लेकिन एक चीज मेरे को बताओ, यहाँ पे इन्फिनिटी दिया है क्या? n दिया है ना? मतलब मैं हक दिया, सीधे बात मैंने हका है ना? तो बता इस चीज को क्या किया, मतलब tan इनवर्स क्या हो जाएगा? x प्लस n माइनस tan इनवर्स x. ये लास्ट टर्म हो जाएगा ना? x कट गया. अब तेरे को लास्ट में क्या बचा? आइटम माइनस आइटम. ठीक है. So now you can write this as tan inverse x plus n minus tan inverse x
Yes or no? And that is Formula. same as your fx. Yes or no? That is your same as Yeah. your fx, है ना? Yep. अभी तेरे को क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी f डैश 0 का मॉड इज हाउ मच, Oh. है ना? दिस इज अ क्वेश्चन, राइट? याद है ना? ये बड़ा सा जो आइटम यहाँ पे लिखा हुआ था, दिस इज अ क्वेश्चन, राइट? So we are just trying to find that out. We have got our dominant function over here. We have got the function. And we just need to find out f dash 0. So we'll find out what? f dash x कितना हो जाएगा? 1 by 1 plus x plus n का whole square minus 1 by 1 plus x का whole square. Sorry, 1 plus x square. होएगा ना? Yes. तेरे को निकालना क्या है? f dash 0. f dash 0 कितना हो जाएगा सर? f dash 0 हो जाएगा 1 plus n square minus 1. मतलब कितना हो गया? 1 minus 1 minus n square by 1 plus n square. हो गया ना? And 1 and 1 gets cancelled. It becomes how much? Minus n square by 1 plus n square. Yes or no? So it will become this value. Now let us just move on and let us just find out. Limit n tends to infinity. F dash 0 का modulus is same as limit n tends to infinity minus n square on 1 plus n square का modulus. होएगा कि नहीं? n square का modulus. Yes. है ना? And now just tell me what is the value? ये वाला where does it tend when n tends to infinity? It tends to n tends to infinity, it tends to 1 minus 1. It tends to minus 1, right? It is bounded by the coefficients of the predecessors, right? Yes. तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, so it becomes minus 1 का modulus. So it become how much? Plus 1. So the answer to this was how much? Answer of this was plus 1. Yes or no? Understood this? Yeah. Khichdi. So I guess sir के students have come. Okay, so I'll just leave you with one question. एकदम same है, ठीक है? ये वाला करना और ये वाला का आंसर मेरे को बता देना. What is the value of tan? Actually, I'm just giving you a equation. So R from 1 to infinity. Okay, so this is cot inverse 2r square is same as 5x plus 6 divided by 6x plus 5. Okay, so this is an equation which is given to you. ठीक है? इस equation के left hand side में there is something which you will get, which it will come out to be a perfect number. Okay, a number आएगा equals to 5x plus 6 है by 6x plus 5 है. Okay, your question is find the number of solutions. Okay, find the number of solutions for x. When I say solutions, obviously it is real solutions, not imaginary. ठीक है? And with that, whatever number you are getting, right, usse from that try to plot if fx equals to 5x plus 6 on 6x plus 5, find the graph of this. ठीक है? As I told you last class, this is bounded by 5 by 6. So 5 by 6 पे एक asymptote आएगा. आएगा कि नहीं? And 6x plus 5 cannot be equals to 0. So x equals to minus 5 by 6 पे भी एक दूसरा asymptote आएगा. ठीक है? ठीक है, ठीक है. So करो और next class you'll just tell. Okay? Okay. ठीक है, Dhananjay sir, I'm just making you the host. Okay, so that you can continue. Okay, Rahul sir. Sure, chill. Okay, thank you. Bye bye. सर मैंने आपको होस्ट बना दिया है ना? Okay, Rahul. Okay, done. Yeah. Good morning, everyone.
हेलो, आवाज आ रही है ना यार? हाँ हाँ सर। सर। ओके, ठीक है देन, ठीक है। तो बाकी लोग कितने ज्वाइन किए? और 3 जन मैक्स टू मैक्स, एक दिन तो एब्सेंट रहेंगे बोले। धनंजय सर आवाज आ रही है चलिए क्या? 3। हाँ आ रही सर है राहुल। मैंने एक्चुअली ये 2 घंटे पहले रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी, तो आपको ये रिकॉर्डिंग को बंद करके वापस स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके ओके, स्टॉप कर देता हूँ। सो इसको